सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. A very warm and pleasant evening to everyone joining us today. It gives me immense pleasure to welcome all the esteemed Vaidyas, Ayurvedic scholars, teachers, students, and practitioners, and Ayurvedic enthusiasts to these special celebrations of Charak Smriti Parv 2026. On behalf of Indian Opedia Ayurvedic Scholar and Ayurved Welfare Foundation, I extend a heartfelt welcome to you all. Today we are here to celebrate the timeless wisdom of Acharya Charak and to enrich our knowledge through these wonderful lecture series. And for today's session, we have with us an eminent Ayurvedic physician and expert in pain, stress, sports injury management. So, without further delay, let us begin today's insightful academic journey. Once again, a very warm welcome to all of everyone. Uh, Let me briefly to explain the 4 day series to you. First, 11th of August today, Vaidya Swapnil Gaunde sir, एक director of हा झालं, 1-2 मिनिटात येते. हा yes ma'am, director of Avachin Ayurved Gurukul. 12th of August 9 p.m. Vaidya Tapan Kumar sir. 13th of August Vaidya Satish Bhatar sir. 14th of August Vaidya Shilpa Pachal ma'am. For today's session, I would like to call I would like to inform you briefly about once a second. Mm, Network issue, one second. Now let us move towards the most awaited part of our today's session. Topic Ayurvedic Trivid Pariksha, a foundation for effective pain management. Pain is one of the most common yet complex clinical presentation. Ayurveda provides us with a holistic approach to understand pain not merely as a symptom but by assessing the patient, the disease it causes, and the understanding those dosha involvement. So, Dr. Savnil Gonde sir is a BMS graduate with an extensive academic and professional background. His qualifications include MSc in Anatomy, MCSC from Japan, DOMP from Japan, MCMT from USA, CFDM from Germany, DCSC in Chiroprathic, CSM from UK, Fellowship in Sports Rehabilitation, and Certification in MSK PRP from UK. His diverse qualification reflect his multidisciplinary approach towards musculoskeletal health, rehabilitation, and pain management. He is an Ayurvedic consultant specializing in pain, stress, and sports injury management at Ayur Prabha Multi-Speciality Ayurveda Hospital, Akola. He is also the director of Ravachin Ayurved Gurukul, contributing significantly to Ayurveda education and academic development. He serves as the honorary consultant at Dr. D.Y. Patil Ayurved College Hospital, Pimpri, Pune. Adding an international dimension to his academic journey, he is also associated with the Palm College of Osteopathic Medicine, Osaka, Japan, where he serves as a faculty and examiner. His journey beautifully brings together the wisdom of Ayurveda, modern anatomical understanding, rehabilitation sciences, and international clinical approaches. And today, we are fortunate to have him with us to share his valuable knowledge and clinical experience on earth. So, the topic is Ayurved Trivid Pariksha, a foundation for effective management. I warmly invite Dr. Swapnil Gonde sir to kindly take over the session and enlighten us with his valuable insights. Sir, Thank you very much, ma'am, for the wonderful introduction. But Dr. Lalit sir, will you want to add something? Dr. Lalit sir. हाँ सर। सबको और एक अच्छी चीज मैं बताना चाहूंगा कि स्वप्निल गावंडे सर एवरी वेंसडे को हमारे साथ में मॉर्निंग विथ आयुर्वेदा हमने एक सोच रखी थी कि हमारी दिन की शुरुआत आयुर्वेदा से हो।
और उसी लेक्चर सीरीज का एक हिस्सा जो सर वेंसडे को लेते हैं, फ्री ऑर्थोपेडिक लेक्चर सीरीज हमारी होती है, कल सुबह भी 9 बजे है, तो आप लोग उसको भी इंजॉय कर सकते हो। सर प्लीज। Okay. Thank you very much, sir. First of all, एक थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाते हैं. How many of you want the today's talk in English, and how many of you want it in Hindi? Quickly, please. कितने लोग चाहते हैं हिंदी में हो, कितने लोग चाहते हैं इंग्लिश में हो? हिंदी। Just like H or E. तो हिंदी में अच्छा रहेगा। Okay. 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 Thank you very much. I got your emotions कि दोनों लैंग्वेज में we will make it bilingual. So if there is कभी आपको बीच में ऐसा लगता है कि if somebody are from south or they are having the trouble with English, or sorry Hindi, they can ask me there, or we can discuss in both the languages. Okay, so we will keep it in bilingual. First of all, thank you very much IIS and Ayurved Foundation for giving me this an opportunity. ये ऐसा है कि वैद्य तुपन कुमार सर, वैद्य सतीश भट्टर सर, जो दोनों भी गुरुतुल्य लोग हैं, डॉक्टर पाटिल मैडम सीनियर प्रैक्टिशनर हैं, यानी किसी भी क्रिकेट के मैदान पे ओपनर को छोड़ के एक टेल एंडर को ओपनिंग के लिए भेज दिया, इसी तरह कुछ मेरा आज हाल है कि एक तो इतना बड़ा मंच पे मुझे ये मौका दिया गया कि चरक जयंती के उपलक्ष्य में मैं आपके साथ मेरे कुछ विचार साझा कर पाऊं. So I will start with the PPT. So मैं भटकू नहीं. ओके, somebody please unmute and let me know कि क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है अभी? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So, Om Dhanvantaraye Namaha. On this auspicious occasion of Charak Jayanti, great tribute to Acharya Charak, the father of Indian medicine, जिन्होंने आयुर्वेद का एक समग्र सोच, एक हेल्थ की, आरोग्य की एक समग्र सोच जो दुनिया को दी, जो आज तक कायम है, जिसे आज भी उसमें एक भी वर्ड चेंज करने की जरूरत नहीं है. हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेद स उच्यते, कि आयुर्वेद की जो डेफिनेशन दिया है कि हिताहितम, ये आयुर्वेद छोड़ के किसी फिलॉसफी में, किसी भी मेडिकल फिलॉसफी में इस वर्ड को नहीं कहा गया है कि हिताहितम, यानी जो सही है, जो स्वस्थ है, उसे स्वस्थ रखना है. हाँ, बहुत सारी मेडिसिन है, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन है, जापानीज मेडिसिन है, टिबेटियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, एलोपैथी है, होम्योपैथी है, हर कोई, यानी दुनिया भर में बहुत सारी ट्रेडिशनल पैथीज और मॉडर्न मेडिसिन है, लेकिन किसी भी इसमें ये सोच कभी नहीं आई कि जो व्यक्ति स्वस्थ है उसके लिए भी कुछ करना चाहिए. ये हमारे आयुर्वेद की बहुत बड़ी एक सीख है दुनिया को. इसीलिए आज भी जब वेलनेस का नाम आता है तो वो आयुर्वेद की तरफ देखा जाता है, और काफी सारे लोग आयुर्वेद को कॉपी करने की कोशिश करते हैं. सो क्या है कि मैंने आज तक जितने भी कॉन्फ्रेंसेस देखे हैं, जितने भी लेक्चर्स देखे हैं, ये सारे के सारे लेक्चर्स, मैक्सिमम लेक्चर जो होते हैं, ये सारे के सारे लेक्चर्स होते हैं ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स पे, कि किसी विशिष्ट व्याधि की ट्रीटमेंट कैसी की जाए, या किसी विशिष्ट कंडीशन को ट्रीट कैसे किया जाए, किसी विशिष्ट स्रोतस को, या फिर किसी
सिस्टम को कैसे ट्रीट किया जाए, इसी के बारे में ज्यादातर बोला जाता है, कल्पों के बारे में बोला जाता है। आज अगर आप सोशल मीडिया पे भी देखते हैं तो ज्यादातर लोग नुस्खे बताने में लगे हैं, ज्यादातर लोग मेडिसिन के यूज बताने में लगे हैं, कोई बात नहीं करता है डायग्नोसिस पे। जबकि चिकित्सा का सबसे सटीक और सबसे आसान डेफिनेशन जो बताई गई है आयुर्वेद में, केवल एक शब्द में बताई गई है, दैट इज संप्राप्ति भंग। और सेकंड उसका ही टॉपिक है, संप्राप्ति भंग करने के लिए जो आपको करना है वो पहली चीज करना है निदान परिवर्जन। तो इस निदान परिवर्जन पे, संप्राप्ति भंग पे कोई बात नहीं करता है, कोई कॉन्फ्रेंस में इस पे बहुत ज्यादा चर्चा नहीं होती है। जब भी मुझे ललित सर ने ये बोला कि सर ऐसे ऐसे हम चरक जयंती की उपलक्ष्य पे एक सीरीज रखने जा रहे हैं और आप लेक्चर में आप कोई टॉपिक लेक्चर पे दीजिए कि जिसपे आप बात कर पाए, तो मेरे जितने भी लोग होंगे जो मॉर्निंग विद आयुर्वेदा ज्वाइन करते हैं, मेरा ज्यादातर फोकस होता है कि आप पहले डायग्नोस करना हमें चाहिए, कोई भी चीज को डायग्नोस करना चाहिए। अगर चिकित्सा का पहला सूत्र हमें ये बताया गया है कि निदान परिवर्जन, तो अगर निदान परिवर्जन ही करना है तो पहले निदान तो करना पड़ेगा। सो आज इसीलिए हमने ये टॉपिक चुना कि जो बेसिक है आयुर्वेद का, आयुर्वेद त्रिविध चिकित्सा, आयुर्वेद त्रिविध परीक्षा, तो कैसे हम इस त्रिविध परीक्षा को पेन मैनेजमेंट में यूज कर सकते हैं। और पेन मैनेजमेंट, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है इंस्टेंट पेन मैनेजमेंट। इंस्टेंट पेन मैनेजमेंट के लिए बहुत सारे टूल्स आयुर्वेदा के पास है, जैसे विद्यकर्म है, अग्निकर्म है, वेदन कर्म है, रक्तमोक्षण है, जलाव का उच्चारण है, स्नेहन स्वेदन है, बहुत सारी चीजें। आप बस किसी भी वेदना को डाल दीजिए, आपको 4 ऑप्शंस, 4 वैद्य आपको बोल देंगे अरे वहां पे अग्निकर्म करो, अरे वहां पे वेदन कर्म करो। लेकिन जो मेरे सोच है वो ऐसी सोच है कि पहले हमें निदान करना चाहिए। आयुर्वेद केवल इंस्टेंट पेन मैनेजमेंट तक सीमित नहीं रहना चाहिए, वो सस्टेनेबल पेन मैनेजमेंट तक रहना चाहिए। जो पेन आपने अभी कम किया उसकी अपुनर्भव चिकित्सा, ये भी एक खासियत आयुर्वेद की रही है। तो इस अपुनर्भव चिकित्सा तक हमें पेन को मैनेज करना है, ना कि केवल और केवल पेन या रुजा इसको ट्रीट करना है। तो इसी टॉपिक के लिए आज हम बात करेंगे क्या कम, बहुत बार ऐसा होता है कि सर मैंने अग्निकर्म कर दिया, वापस पेशेंट आ गया, 2 दिन बाद की वापस दर्द वैसे ही हो गया। सर हमने पेशेंट को वेदन कर्म कर दिया या उसका 8 दिन बस्ती किया, लेकिन फिर भी पेशेंट को पेन है ही। मुझे काफी सारे जो पार्टिसिपेंट्स रहे हैं पुराने वर्कशॉप्स के, उनके कॉल आते हैं। काफी सारे लोग जो मुझे जानते हैं उनके कॉल्स आते हैं कि सर हमने पेशेंट का पंचकर्म कर लिया, हमने पेशेंट का अग्निकर्म विद्यकर्म कर लिया, जानू बस्ती कटी बस्ती कर लिया है, बाकी सारी ट्रीटमेंट्स कर लिए, लेकिन फिर भी अभी भी पेशेंट को पेन अभी भी है या उसको 100% रिलीफ नहीं आ रहा है। पेशेंट को कुछ दिन तक तो अच्छा लगता है लेकिन फिर वापस आ जाता है। तो इन सब का जो रीजन है कि हमारा असेसमेंट में कहीं तो भी कमी रह गई है। तो आज जिसके लिए हम बात करने जा रहे हैं, तो इसीलिए मैंने पहली स्लाइड या पहली शुरुआत ही यहां से करते हैं कि पेन असेसमेंट में हम कॉमन मिस्टेक्स क्या कर देते हैं, हम कहाँ कम रह जाते हैं या कहाँ हम मिस कर जाते हैं कुछ चीजों को। सो क्या होगा कि ये जो नीचे दिए गए, मेरे हिसाब से मुझे ये 8 कारण मिले जो मैंने मेरी प्रैक्टिस में देखे हैं। तो फर्स्ट थिंग कि त्रिविध परीक्षा जो कि बेसिक बताया गया है, दर्शन प्रश्न और स्पर्श, ये जो 3 चिकित्सा हमें बताई गई है बेसिकली, ये जो 3 परीक्षाएं बताई गई है, इन परीक्षाओं की तरफ हम ध्यान ही नहीं देते हैं। हम ध्यान देते हैं, क्या करते हैं कि अच्छा क्या हुआ, आप गिर गए थे, ओके तो यहां लगा था, हम उसी को फोकस करेंगे। अच्छा लो बैक पेन है, आपके साथ पेशेंट के साथ रिपोर्ट है, वहां पे लिखा है कि डिस्क हर्निएशन है या डिस्क प्रोट्रूजन है, एक्सट्रूजन है, जो भी है हम उसी के पीछे पड़ जाते हैं, उसी को ट्रीट करने के पीछे पड़ जाते हैं। हम पूरा हिस्ट्री पेशेंट का, पूरा दर्शन स्पर्शन प्रश्न, इससे जो जाना चाहिए, इस
वो पूरी वर्क फ्लो से जो जाना चाहिए वो हम नहीं जाते हैं। देन क्या होता है कि फोकस ओनली ऑन सिम्टम, कि भाई पेन कैसा है, उसको हम आइडेंटिफाई नहीं करते कि यहाँ पे किस दोष का, किस धातु का और स्रोतस का इन्वॉल्वमेंट कैसा है, या इनका सिंक्रोनाइजेशन कैसे हो रहा है, कि क्या कफ के स्थान में पित्त की वजह से पेन हो रहा है, या फिर कफ के स्थान कफ स्वस्थान में प्रकोपित हो गया है, क्या स्त्रोतस जो है वो किसी स्त्रोतस में अवरोध है या किसी स्त्रोतस में इरिटेशन है। इन सारी चीजों को हम इग्नोर करते हैं। और उसके बाद में जो इग्नोर्ड पार्ट होता है वो बहुत बार दोषों का धातु के साथ जो संयोग होता है, वो दोष और धातु का हम कोरिलेशन नहीं कर पाते हैं। बहुत बार स्त्रोतो दृष्टि हम सही से नहीं ढूंढ पाते हैं। तो इन सारी कारण की वजह से पेन वापस आते जाता है। दूसरी बात, इनसफिशिएंट प्रश्न, कि हम क्या है ना कि पेशेंट को क्या क्वेश्चन पूछने चाहिए, इस पे एक अक्खा सेमिनार एक हो सकता है, इस पे एक अक्खा कोर्स लिया जा सकता है कि क्वेश्चन क्या करनी चाहिए पेशेंट को। फॉर एग्जांपल, पेशेंट आपके पास आता है, डॉक्टर साहब बहुत दर्द है, कमर में बहुत दर्द है। तो कमर दर्द के साथ साथ आपने जो क्वेश्चंस पूछने चाहिए, उन क्वेश्चन के बारे में हम कभी कभी इग्नोर कर देते हैं। अच्छा ठीक है, कमर में दर्द है, हम 2-3 क्लिनिकल टेस्ट कर लेंगे और उस कमर दर्द को ट्रीट करने लग जाएंगे। लेकिन हम उसका पैटर्न कैसे है, उसका यानी क्या वो दिन में पेन है, क्या वो सुबह पेन है, क्या वो शाम में पेन है, क्या बैठ के उठते वक्त पेन है या उठ के बैठते वक्त पेन है, खड़े रहते वक्त पेन है। क्योंकि अगर आप ये क्वेश्चंस पूछना चालू करोगे तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ऐसे इंफॉर्मेशन आपको मिलने लगेगी, बहुत ही अमेजिंग आंसर। अभी मेरे पास कल एक पेशेंट आए थे, उनका कहना है कि डॉक्टर साहब मुझे कुछ भी दर्द नहीं होता है, लेकिन मैं 5 मिनट से ज्यादा खड़ा नहीं रह पाता। मैं 5 मिनट से ज्यादा खड़ा रहूं तो मुझे लो बैक पेन शुरू हो जाता है, जबकि मैं 5 किलोमीटर चल लेता हूँ, मुझे सीढ़ियाँ चढ़ने में तकलीफ नहीं है, सोने में तकलीफ नहीं है, कोई भी नहीं, लेकिन मैं 5 मिनट खड़ा नहीं रह पाता हूँ। तो वी शुड स्टार्ट थिंकिंग कि ऐसा क्या गलत हो रहा है उसके स्टैंडिंग में, जिसकी वजह से वो सारी एक्टिविटी तो कर पा रहा है मगर स्टैंडिंग में पेन हो रहा है। तो ये आपको उसमें से बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। देन आजकल जितने भी केसेस आते हैं मेरे यहाँ पे, जितने भी केसेस आते हैं, मैं तो सिर्फ पेन मैनेजमेंट के, स्पाइन जॉइंट और स्पोर्ट इंजरी के ही केसेस देखता हूँ। तो जितने भी केसेस में देखता हूँ, इसमें मैक्सिमम इसमें अग्निमांद्य आपको मिलेगा, या तो अग्निमांद्य मिलेगा या तो क्रूर कोष्ठ मिलेगा। और जो बहुत कॉमन है वो है कि आमस संप्राप्ति आपको ज्यादा मिलेगी, क्योंकि आजकल की लाइफस्टाइल। और एक बात और मैं बोलना चाहूंगा आपको अभी कि आमज संप्राप्ति केवल शारीरिक नहीं होती है, मानसिक आमज संप्राप्ति भी पेन को बढ़ावा देती है। हम आगे भी देखेंगे, पेन बढ़ने के लिए मानसिक आमज अवस्था भी कारणीभूत हो सकती है। ओके, सो अगेन, not assessing the स्रोतस properly, failing to identify the aspect स्रोतस result in incomplete understanding of the pain। यानी हम जनरली ऐसे बोलते हैं कि बिना वात नस्ती रुजा, यानी बिना वात के रुजा हो नहीं सकती, दर्द हो नहीं सकता। लेकिन क्या वो स्त्रोतावरोध जन्य है, क्या वो क्षय जन्य है, या फिर वो वैषम्य जन्य है, आगंतुज है, इसको हमें समझना चाहिए। इसके लिए हमें प्रॉपर ये त्रिविध परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बताया कि मानसिक भाव भी आपको समझना चाहिए, कि मानसिक अवसाद, स्ट्रेस, इमोशनल फैक्टर्स, फीलिंग ऑफ लोनलीनेस, सोशल स्टिग्मा, इन सारी बातों को इग्नोर करना भी कभी कभी महंगा पड़ सकता है, कभी कभी पेन को बार बार रिकरेंट ला सकता है। देन सुश्रुता, दो वी आर स्पीकिंग अबाउट द चरक, चरक ने भी यही चीज कही है, सुश्रुत ने भी यही चीज कही है कि जो वैद्य है वो बहुश्रुत होना चाहिए। जैसे जैसे आधुनिक डेवलपमेंट होगी वो हमने अपनानी चाहिए। तो बहुत बार क्या होता है कि हमारा पेन असेसमेंट और जो रेडियोलॉजी में बताया गया है, यानी एक्सरे में, एमआरआई में या सोनोग्राफी में, वो कभी मैच ही नहीं करता है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि आपका डायग्नोसिस गलत है और एक्सरे या सोनोग्राफी या एमआरआई सही है, लेकिन उसका सिंक्रोनाइजेशन हमें करना जरूरी है कि क्यों एमआरआई में ऐसा है, और अगर एमआरआई में या एक्सरे में अगर ये
फॉल्ट यहाँ दिख रहा है, तो फिर हमारी ट्रीटमेंट में या क्लिनिकल फैक्टर में क्यों उसके विपरीत लक्षण दिख रहा है, ये हमें असेस करना बहुत जरूरी है. देन what is the takeaway from this lecture? That is, complete assessment comes from observing, touching and asking with awareness. ये बहुत जरूरी है. With awareness, understand the root, not just the pain. Got it? So ये आज हम इन सारे मुद्दों पे बात करेंगे. इन सारी मुद्दों को मैं अपनी तरह से आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा. आज जो भी लेक्चर है उसमें हम पहले कोशिश करेंगे कि त्रिविध परीक्षा का कंसेप्ट क्या है, उसका क्लिनिकल महत्व कितना है, त्रिविध परीक्षा एक्चुअली हमने किस तरह से क्लिनिक में फॉलो करनी चाहिए, और हमें मॉडर्न क्लिनिकल एग्जामिनेशन के साथ कैसे इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, और जो फाइंडिंग्स हमें मिलेंगी वो हमारे क्लिनिकल डिसीजंस को, यानी इसको पंचकर्म करना है, इसको लंघन देना है, इसको अग्निकर्म करना है, ये जो क्लिनिकल डिसीजंस होंगे, ये क्लिनिकल डिसीजंस बनाने में हमें कैसे मदद करेगी. ओके, तो परीक्षा क्यों मैटर करती है, क्यों आज मैंने ये टॉपिक चुना, त्रिविध परीक्षा क्यों ये मैटर करती है? क्योंकि अगर आप सही से ये परीक्षण या क्लिनिकल डायग्नोसिस या क्लिनिकल मेथड या क्लिनिकल असेसमेंट करोगे तो यू विल बी एट द करेक्ट डायग्नोसिस, एंड इफ यू रीच टू द करेक्ट डायग्नोसिस योर ट्रीटमेंट विल बी मोर पेशेंट सेंट्रिक. आपकी ट्रीटमेंट पेशेंट सेंट्रिक होगी, मोर स्पेसिफिक और मोर इफेक्टिव होगी. सो एक्यूरेट एग्जामिनेशन इज द फाउंडेशन ऑफ द इफेक्टिव ट्रीटमेंट. तो क्या करना चाहिए हमें? अवॉइड सिम्टम बेस्ड ट्रीटमेंट. पहले तो सिम्टम बेस्ड ट्रीटमेंट करना बंद कर दीजिए. कोई जरूरत नहीं है इंस्टेंट पेन मैनेजमेंट का बर्डन हैंडल करने के लिए. आपके पास पेशेंट आएगा, पेशेंट बोलेगा डॉक्टर साहब बहुत दर्द है, बहुत दर्द है. बहुत बार पेशेंट का टोन तो ऐसे होता है जैसे वो दर्द आपकी वजह से. तो फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड, फर्स्ट यू हैव टू कॉल्म डाउन कि जो पेशेंट आपके पास जो भी दर्द लेके आया है, जो भी व्याधि लेके आया है, वो व्याधि आपके कारण नहीं हुई है, और आप उस व्याधि को ठीक करने का एक जरिया हो. आप उस पेशेंट की हेल्प करना चाहते हो, आप उस पेशेंट को ट्रीट करना चाहते हो. इस बारे में आपने आपके नॉलेज, आपके एक्सपीरियंस, आपका फाइंडिंग के बेसिस पे डायग्नोसिस करना फर्स्ट थिंग है, और फिर पेशेंट को एश्योर करना कि भाई देख ये तकलीफ है, ये 3 चीजें हो सकती है. सो वी हैव टू एस्टैब्लिश द डिफरेंशियल डायग्नोसिस. देन ये ट्रीटमेंट की प्रायोरिटीज होगी. पहले आपकी सूजन कम करनी पड़ेगी, या पहले आपका ये दर्द कम करना पड़ेगा. आपका खान पान, आपका रहा यानी आपकी लाइफस्टाइल, आपकी जो खान पान है, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा, और इसकी वजह से आपका दर्द कम ही होगा और वापस बार बार लौटेगा भी नहीं. सो इसके लिए वी शुड बी कॉन्फिडेंट दैट वी हैव टू ट्रीट द पेशेंट होलिस्टिकली, कंप्लीटली, नॉट जस्ट subsiding the pain symptom by doing the symptomatic treatment. तो जैसे कि गोयल मैम ने उनकी एक इंट्रोडक्शन में भी कहा कि पेन इज नॉट जस्ट ओनली अ सिम्टम. सो पेन इज मोर देन अ सिम्टम. क्यों? क्योंकि पेन इज अ सब्जेक्टिव. यानी अगर मैं फॉर एग्जाम्पल किसी 2 लड़कों को दंडों से मारूं, किन्हीं 2 लड़कों को अगर मैंने डंडा मारा तो जरूरी नहीं है कि दोनों को एक जैसा ही पेन होगा. जबकि मैं मारने वाला सेम हूं, डंडा सेम है, मेरी ताकत भी सेम है, लेकिन उनका दर्द जो है वो अलग अलग रहेगा, बिकॉज इट चेंज फ्रॉम वन टू अनदर. ये पहली बात समझ लीजिए कि हर किसी का पेन, अगर कोई पेशेंट आपके पास आ रहा है और ही इज नॉट कंप्लेनिंग कि भाई मुझे बहुत ज्यादा पेन नहीं है, डल पेन है या थोड़ा बहुत पेन है, तो डोंट इग्नोर. शायद उसका पेन थ्रेशोल्ड बहुत ज्यादा हो, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको जो पैथोलॉजी है वो कम हो. और अगर कोई पेशेंट आ रहा है कि जो बहुत ज्यादा हल्ला मचा रहा है, बहुत ज्यादा पेन में करा रहा है, तो इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि अगर पेशेंट को बहुत ज्यादा पेन है तो इसका मतलब कोई बड़ा प्रॉब्लम भी है, बिकॉज इट इज अगेन अ सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस. किसी को बहुत बड़ी जख्म होके भी वो बहुत ज्यादा बोलेगा नहीं, और किसी को थोड़ा बहुत लग जाएगा, खरोच भी आ जाएगी तो वो बहुत चिल्लाएगा. ओके,
So there are the chances कि multiple pain sources can be there. Then दूसरी बात, अगर पेशेंट बोल रहा है कि मुझे पेट दर्द हो रहा है और कमर दर्द हो रहा है, तो जरूरी नहीं है कि कमर दर्द और पेट दर्द हमेशा एक दूसरे से कनेक्टेड ही रहे. हो सकता है कि दोनों चीजें एक साथ आई हो. सो मल्टीपल पॉसिबल हो सकते हैं पेन के. सो देयर मे बी द मल्टीपल पॉसिबल पेन जनरेटर्स. तो ये बात भी हमें देखना चाहिए. देखिए, स्ट्रक्चरल पेन, फंक्शनल पेन और रेफर्ड पेन, इन पेन पैटर्न को समझना पड़ेगा आपको कि स्ट्रक्चरल पेन का मतलब होता है कि हिल पेन हो रहा है, फिर एक्सरे निकल गया कि वहां पे हड्डी बढ़ गई, हम उसको अस्थिकंटक बोलते हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन उसे कैल्केनियल स्पर बोलते हैं. तो बस उस स्ट्रक्चर की वजह से पेन हो रहा है. तो इट इज नॉट एक्चुअली द फंक्शनल पेन. फंक्शनल पेन क्या है, डॉक्टर साहब कोई तकलीफ नहीं हो रही है, बस ये पर्टिकुलर मूवमेंट करता हूं तो दर्द होता है, ये पर्टिकुलर चीज करता हूं, या मैं सुबह नींद से उठती हूँ और पैर टिकाती हूँ तो बहुत दर्द होता है, तो इसका मतलब पैर टिकाने से पेन नहीं हो रहा है. इट मे बी द स्ट्रक्चरल पेन. एंड द सेम थिंग, अगर पैर टिकाने से पेन हो रहा है तो इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि उसको कैल्केनियल स्पर या प्लैंटर फैसाइटिस ही हो. इसके साथ में एक और इंटरेस्टिंग पार्ट होता है जिसके बारे में मैं बहुत बार बोलता हूँ, दैट इज द रेफर्ड पेन पैटर्न. कि साइटिका के बारे में आप सब लोगों को पता है, अपर लिम्ब रेडिकुलोपैथी के बारे में भी आप सब लोगों को पता है कि प्रॉब्लम होता है लंबर स्पाइन में, लेकिन पेन जो होता है वो लोअर लिम्ब में या फिर किसी पर्टिकुलर पार्ट पे होता है. तो ये रेफर्ड पेन होता है. लेकिन बहुत बार क्या होता है कि मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा कि बहुत बार क्या है कि पेशेंट आपके पास आता है एक अलग पेन के लिए. फॉर एग्जांपल, पेशेंट आपके पास आ रहा है कि मेरी रिस्ट बहुत पेन है, मेरे रिस्ट में बहुत पेन है. लेकिन जब आप उसको ठीक से इवेल्युएट करोगे, ठीक से उसको डायग्नोस करोगे, तो आपके ध्यान में आएगा कि अरे अरे, तो सर्वाइकल स्पाइन की वजह से पेन है. बहुत बार पैरास्कैपुलर रीजन में यहाँ पेन होता है. पेशेंट को बहुत कॉमन पेन होता है पैरास्कैपुलर रीजन में, स्पाइन के बाजू में. तो जब आप इसको डायग्नोस करोगे तो आपको ध्यान में आएगा कि भाई ये दिस पेन इज नॉट द स्ट्रक्चरल पेन, दिस इज नॉट द फंक्शनल पेन, लेकिन ये डायफ्रामेटिक इरिटेशन की वजह से होने वाला रेफर्ड पेन है. तो आप कितना भी वहां पे पंचकर्म कर लो, कितना भी वहां पे अग्निकर्म कर लो, कितना भी ये कर लो, वो पेन चाहे थोड़ी देर के लिए कम हो जाए, 2 दिन 4 दिन 5 दिन के लिए ठीक हो जाएगा, लेकिन वो वापस आएगा क्योंकि आपने उसका रूट कॉज ट्रीट ही नहीं किया. उसका रूट कॉज था कोष्ठ में, उसका रूट कॉज था इंडाइजेशन में, उसका रूट कॉज था एसिडिटी में. जबकि पेशेंट आपके पास आ रहा है मस्कुलोस्केलेटल पेन के लिए, लेकिन पेशेंट को जो पेन था दैट वाज रेफर्ड फ्रॉम द इरिटेशन ऑफ डायफ्राम. ओके, सो दिस इज द इम्पोर्टेंट ऑफ आइडेंटिफाइंग द सोर्स एंड मैकेनिज्म. तो ये इस तरह से जब आप सोर्स और मैकेनिज्म ढूंढोगे तो आपकी जो ट्रीटमेंट की इफिकेसी है वो बढ़ जाएगी, स्पेसिफिसिटी बढ़ जाएगी. सो बिफोर ट्रीटिंग पेन, अंडरस्टैंड द पेन. तो सिंपल थिंग कि कोई भी पेन को ट्रीट करने से पहले उस पेन को समझना जरूरी है. क्लिनिकल एप्लीकेशन कैसे करेंगे? अप्लाई त्रिविध परीक्षा इन पेन मैनेजमेंट थ्रू एलिवेशन, एक्यूरेट डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट प्लानिंग, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट और बेटर आउटकम एंड प्रिवेंशन. इन सारी चीजों के लिए त्रिविध परीक्षा हम यूज कर सकते हैं. सो आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे कि त्रिविध परीक्षा क्या. द 3-fold एग्जामिनेशन इन आयुर्वेदा, दैट इज दर्शन, स्पर्शन एंड प्रश्न. तो व्हाट इज मीन बाय दर्शन? द सिंपल थिंग, through the observation, appearance, posture, movement, expression, gait, body build, etc. यानी केवल पेशेंट को देखना नहीं है, पेशेंट का अपीयरेंस कैसे है, पेशेंट कैसे खड़े रह रहा है, उसका पोस्चर कैसे है, कौन सी बाजू पे ज्यादा वो जोर दे रहा है, किस पोजीशन में वो कंफर्टेबल है, किस पोजीशन में वो अनकंफर्टेबल है, कौन सी मसल पे प्रेशर आ रहा है, कौन से लेग पे प्रेशर आ रहा है, उसके एक्सप्रेशन कैसे है जब वो पोस्चर बदल रहा है, तो उसका चलना कैसे है, गेट कैसा है, पेशेंट चल कैसे रहा है, बॉडी बिल्ड कैसी है, मोटा है, पतला है, उसका सेंट्रल ओबेसिटी है, ट्रंकल ओबेसिटी है, या फिर ओवरऑल ओबेसिटी है, या फिर बहुत ज्यादा क्षीण है. ये सारी चीजें हमें देखना जरूरी है. स्पर्शन में टच डजंट ओनली मीन द
पाल्पेशन और टेम्परेचर। आपको टेम्परेचर भी देखना है, टेक्सचर भी देखना है, टेंडरनेस देखना है, स्वेलिंग देखना है और पल्स यानी नाड़ी चिकित्सा भी देखना है। इसके साथ साथ स्पर्शा सहत्व भी इसमें आपको देखना है। प्रश्न दैट इज आस्किंग, तो इसमें चीफ कंप्लेंट, हिस्ट्री, ऑनसेट ड्यूरेशन, एग्रीवेटिंग एंड रिलीविंग फैक्टर्स, इसके साथ साथ और भी कई प्रश्न आप उसमें ऐड कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन पेशेंट टू पेशेंट। So when we examine completely, we understand correctly. When we understand correctly, we treat effectively. So हमेशा ये चीज को ध्यान में रखिए। तो पहली चिकित्सा के बाद तरफ पढ़ते हैं हम दर्शन चिकित्सा। I will have a second break and please let me know that am I audible and the screen is visible again. Somebody please unmute and let Yes, me know. sir. You are Yes, audible. sir. Yes, sir. ज्यादा बोर तो नहीं कर रहा हूँ? No, sir. No. Okay. It's interesting. Very informative, sir. Okay. So now we are trying to understand कि दर्शन परीक्षा, तो हमें दर्शन परीक्षा में क्या करना है। So observation as the first step in the pain assessment. तो आपने जैसे ही आपकी ओपीडी का, आपकी कैबिन का दरवाजा पेशेंट खोल के अंदर आ रहा है, तो आपने ऑब्जर्व करना चालू करना चाहिए कि व्हाट इज हिज फेशियल एक्सप्रेशन, उसके बॉडी लैंग्वेज कैसी है, उसका बॉडी लैंग्वेज कैसी है, उसका अपीयरेंस कैसा है, सॉरी, इन सारी चीजों को आपने ऑब्जर्व करना चाहिए। वो किस तरह से बैठ रहा है, इन चीजों को आपको समझना चाहिए। सो जनरल ऑब्जर्वेशन में आपने क्या करना चाहिए, अपीयरेंस, एक्सप्रेशन, डिस्ट्रेस एंड गार्डिंग और प्रिफर्ड पोजीशन यानी कंफर्टेबल पोजीशन। फर्स्ट जो पेन के लिए आपने करना चाहिए, कोई भी पेन हो, चाहे पेशेंट बोल रहा है कि मेरी उंगली क्यों ना दर्द हो रही हो, लेकिन शुरुआत में आपको इस चीजों को ध्यान में रखना है कि आपको पेशेंट का अलाइनमेंट एंड सिमेट्री देखना है, प्रोटेक्टिव एंटाल्जिक पोस्चर देखना है, यानी किस पोस्चर को पेशेंट अवॉइड कर रहा है, किस पेशेंट में पेशेंट कंफर्टेबल लग रहा है, और अलाइनमेंट यानी पेशेंट कैसे इक्विलिब्रियम में, दोनों हाथ, दोनों कंधे, दोनों कमर, दोनों घुटने, दोनों पैर इक्वी डिस्टेंस है, एक दूसरे से इक्वल है, उनमें मूवमेंट इक्वल है, हम आगे देखेंगे। जिसके बाद में गेट ऑब्जर्वेशन आपने करना चाहिए कि पेशेंट कैसे स्टेप डाल रहा है, क्या उसके स्टेप डालने में सिमिलरिटी है या वो छोटे बड़े डाल रहा है, या किसी एक पैर पे प्रेशर देके जा रहा है, जिसको एंटाल्जिक गेट भी बोलते हैं कि एक पैर पे ऐसे लगड़े जैसा चल रहा है। वेट बेयरिंग कैसा है, क्या पेशेंट घबरा के चल रहा है, क्या पेशेंट को कहीं पे इंस्टेबिलिटी लग रही है, कमर में इंस्टेबिलिटी लग रही है या घुटने में इंस्टेबिलिटी लग रही है, एंकल में इंस्टेबिलिटी लग रही है, ये सारी चीजें आपको ऑब्जर्व करना है। उसके बाद में मूवमेंट ऑब्जर्वेशन, यानी पेशेंट को सारी मूवमेंट करा के देखिए, दोनों हाथ साथ में उठा के देखिए कि क्या दोनों हाथ एक ही स्पीड से, सेम स्पीड से जा रहे हैं। पेशेंट को दोनों तरफ गर्दन घुमा के देखनी चाहिए कि दोनों तरफ की रेंज ऑफ मोशन इक्वल है या नहीं है। आगे झुका के देखनी चाहिए कि कहीं पे ये है क्या। और किसी एक चीज कर सकते हैं आप कि अगर लो बैक पेन है या नी पेन है या सर्वाइकल पेन है, तो पेशेंट को एक पैर पे खड़ा करके देखिए और पूछिए कि कौन सा पैर पे आपको बैलेंस ज्यादा अच्छा लग रहा है। ओके, किस पर्टिकुलर पोजीशन में पेन प्रोवोकेट हो रहा है यानी पेन बढ़ रहा है, ये भी आपको यू हैव टू ऑब्जर्व। लोकल इंस्पेक्शन आपको करना है कि कहीं पे स्वेलिंग है क्या, कहीं पे डिफॉर्मिटी, स्कार है क्या, कहीं पे मसल वेस्टिंग है क्या। यानी ऐसा तो नहीं है कि पेशेंट की पीछे का एक पार्ट बल्कि लग रहा है, एक में आपको क्लियर कट उसकी रिब्स दिख रही है और एक में रिब नहीं दिख रही है, या दोनों घुटने हैं कि जिसमें एक घुटना आपको सॉलिड बड़ा दिख रहा है, दूसरा घुटना सुजा हुआ या फिर श्रंकन लग रहा है। सो ये आपने करना चाहिए। पेन बिहेवियर एंड एक्सप्रेशन की पेशेंट में फेशियल एक्सप्रेशन कैसे है, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म कैसा है, और डर किस बात का है या हेजिटेशन किस बात का है। बहुत बार पेशेंट ऐसा आता है कि डॉक्टर साहब पैर हिलाने से भी डर लग रहा है, डॉक्टर साहब हाथ हिलाने से भी डर लग रहा है, हिलाऊंगा तो ऐसा लगता है कि हाथ टूट जाएगा। तो इन सच कंडीशंस, ऐसी सारी चीजों में वी हैव टू फोकस। एक बेसिक प्रोटोकॉल आपको दर्शन का देना चाहूंगा मैं 60 सेकंड का, कि आप वॉकिंग देखिए, उसका स्टैंडिंग पोस्चर देखिए, कंपेयर राइट लेफ्ट करिए, उसके बाद में ऑब्जर्व द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, पेशेंट की मूवमेंट अपने आप कैसी हो रही है,
परफॉर्म रिलेवेंट फंक्शनल, जैसा मैंने कहा कि आगे झुका के देखिए, साइड में मुड़ा के देखिए, उसका फ्लेक्शन एक्सटेंशन करा के देखिए जॉइंट का, और इंस्पेक्ट द पेनफुल रीजन, जो पेनफुल रीजन है उसको ऑब्जर्व कीजिए कि क्या वो उसकी काउंटर पार्ट से, यानी फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट बोल रहा है कि मेरा राइट वाला कंधा दुख रहा है, तो आप ऑब्जर्व कीजिए कि राइट वाले कंधे में कोई स्ट्रक्चरल डिफरेंस दिख रहा है क्या लेफ्ट वाले कंधे से, और फॉर्म प्रिलिमिनरी हाइपोथेसिस। तो इससे क्या है ना कि आपको एक आइडिया आ जाएगा। उसके बाद में आप कंफर्म कीजिए उसको स्पर्शन और प्रश्न और फर्दर एग्जामिनेशन से। सो ये 1 मिनट में आपका ऑब्जर्वेशन या दर्शन परीक्षा होगा, क्योंकि ये आपको इंफॉर्मेशन देगा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन देगा कि पेशेंट का पेन जनरेटर क्या है, पेशेंट का पेन जो है रुझा कहां से आ रही है। अब इसमें मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं कि ये पेशेंट मेरे पास आए थे फॉर द लेफ्ट नी पेन। हाँ, इनको जो था लेफ्ट नी पेन था। इनको अगर आप देखोगे तो जब हमने इनका पोस्चरल एनालिसिस किया तो आप देख सकते हो कि ये जो PSIS या ये जो डिंपल्स है, इनका डिस्टेंस जो है ये इस सेंट्रल जो हमारा स्पाइन है उससे लेफ्ट वाले का कम है, राइट वाले का ज्यादा है, और ये ऊपर नीचे भी लग रहे हैं, इम्बैलेंस भी लग रहे हैं। जबकि आप देख रहे हो पेशेंट इज स्टैंडिंग क्रॉस। तो इसका मतलब यह है कि इनका यहां से हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि पेशेंट के पेल्विक गर्डल जो है उसमें प्रॉब्लम है, ना कि घुटने में। सेकंड, जब हमने उनको लैटरली देखा तो आप देख सकते हैं कि इनको बहुत ज्यादा फॉरवर्ड नेक पोस्चर है। पेशेंट ऑलरेडी बल्की है, हेवी वेट है और फॉरवर्ड नेक पोस्चर है। यानी इनके जो ये जो थोरैकोलंबर रीजन होता है, सॉरी सर्वाइको थोरेसिक रीजन होता है, जिसको सीटी जंक्शन भी कहा जाता है, जहां पे C7 और T1 दोनों एक साथ आते हैं, ये जो पोर्शन बनता है, बहुत सारे लोगों को आपने यहाँ पे हम्प बनते देखा होगा, उसको बुल्स हम्प या काउज हम्प भी बोलते हैं। एक वो बहुत बार फैट डिपोजिशन होता है, बट दैट फैट डिपोजिशन इज रिएक्शन। वो फैट डिपोजिशन रिएक्शन है, क्योंकि जब आपका फॉरवर्ड नेक पोस्चर हो जाता है तो क्या होता है कि आपके सर्वाइकोथोरेसिक जंक्शन पे यानी C7 T1 पे एडिशनल प्रेशर आता है, वहां की लिगामेंट्स, वहां की टेंडॉन्स, वहां की मसल्स ये स्ट्रेच हो जाती है, और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए फिर वहां पे फैट डिपोजिशन चालू होता है, जिसको हम भी बोलते हैं। ओके, सो दिस काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन यू शुड डू। देन आते हैं मोशन पाल्पेशन या मोशन पे। जैसे अभी ये पेशेंट है, इनको आगे की तरफ झुका के देख रहे हैं। अच्छा, तो अब जब आप देख रहे हो तो आप देखोगे कि पेशेंट टेढ़ा झुक रहा है, यानी ही इज बेंडिंग मोर ऑन लेफ्ट साइड एंड ही इज स्टीफ ऑन द राइट साइड। यू कैन सी, यहाँ हाथ लगा रहा है पेशेंट, यानी इस एरिया में पेन है, लेकिन आप देखोगे कि स्टीफनेस जो है वो अपोजिट साइड में, यहां से ज्यादा झुक रहा है। सो दिस गिव्स यू इंफॉर्मेशन कि ये जो राइट साइड की जो हिप फ्लेक्सर्स है या हैमस्ट्रिंग्स है, ये स्टीफ है, और ये स्टीफ होने की वजह से जो लेफ्ट साइड की नर्व है उस पर स्ट्रेस आ रहा है, ये मूवमेंट अलाउ नहीं कर रही है राइट साइड, इसलिए लेफ्ट साइड पेन हो रही है। तो जब एक तरफ से खींचा जाएगा तो दर्द होगा। सो वी हैव हियर वी विल गेट द इंफॉर्मेशन कि हम इस साइड में कितने भी ट्रीटमेंट कर ले, लेफ्ट साइड में उतना फर्क नहीं पड़ने वाला। वी हैव टू ट्रीट ऑन द राइट साइड। ये जो कंसेप्ट है, ये अगर मर्म चिकित्सा आपने पढ़ी है तो इसमें एक कंसेप्ट आती है दैट इज कॉल्ड एज अडंगल मर्म। तो ये जो अडंगल मर्म होते हैं, ये अडंगल मर्म में ये कंसेप्ट आया है कि व्हेन यू वांट टू ट्रीट द राइट साइड, ट्रीट द लेफ्ट साइड। विरुद्ध बाजू का मर्म चिकित्सा कीजिए तो जो साइड में दर्द है उस साइड का दर्द या उस साइड का ट्रीटमेंट ठीक होगा। तो ये कंसेप्ट अडंगल मर्म में आया है। देन अगर ये पेशेंट है, इसको हम जब देख रहे हैं तो इस पेशेंट को जो है वो शीन पेन है। ये बहुत कॉमन होता है शीन पेन एथलीट्स में और स्पोर्ट्स पर्सन में, या जो लोग ज्यादा वॉकिंग करते हैं। तो इसमें भी हम
पाल्पेशन कैसे करना है या मोशन पाल्पेशन कैसे करना है, कि हम इसको डॉर्सिफ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन करके देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ 50% ठीक लग रहा है। पेशेंट इज टेलिंग कि भाई मैं जब डॉर्सिफ्लेक्शन कर रहा हूँ यानी पैर को मेरी तरफ मोड़ रहा हूँ तो मुझे दर्द हो रहा है, लेकिन मैं जब फ्लेक्शन कर रहा हूँ या मैं प्लांटर फ्लेक्शन जब कर रहा हूँ तो मुझे 50% तक बेटर रह रहा है। तो ये इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है हमें कि जब ये बिकॉज जब ये फुट को डॉर्सिफ्लेक्स कर रहा है तो ये जो फ्लेक्सर है दिस इज तो मुझे पेन हो रहा है, इसका मतलब इसकी जो टिबियालिस मसल जो है वो टाइट है, सो वी हैव टू ट्रीट ऑन द टिबियालिस मसल। जबकि ये जब पुल कर रहा है तो द टिबियालिस मसल जब पुल होगी स्ट्रेच होगी तो ही विल फील बेटर, तो ये जो है टिबियालिस मसल हमें इसे ट्रीट करना है। हमें बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। इफ वी विल डू द प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ टिबियालिस मसल, फिर चाहे वो सिंपल स्नेहन स्वेदन हो सकता है, फिर चाहे वो सिंपल अग्निकर्म हो सकता है, वेदन कर्म हो सकता है, वॉट एवर, बट यू आर नाउ प्रिसाइज कि भाई इसको टिबियालिस मसल में स्प्रेन आ गया है या टिबियालिस मसल इसकी स्ट्रेच है, खींची गई है। So this is how you have to do the darshan pariksha. So darshan pariksha will give you a lot of information. So let's move to the next pariksha. That is the prashna pariksha. So prashna is a very much important thing क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको देगी। तो किस टाइप के पेशेंट आपको पहले पेशेंट को पूछना चाहिए और आपके केस पेपर में भी उसी सीक्वेंस में लिखना चाहिए। आपको पेशेंट को पहले प्रश्न ये पूछना चाहिए कि आपको सबसे ज्यादा जो तकलीफ है वो मुझे सबसे पहले बताइए। शो द चीफ कंप्लेंट, व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम, देन वेयर इज द प्रॉब्लम, देन सिंस व्हेन द प्रॉब्लम। तो फिर उसके साथ में आप उसको पूछ सकते हैं कि भाई आपको कब से तकलीफ है, कहाँ ज्यादा तकलीफ है, किस समय पे ज्यादा तकलीफ होती है। फिर आपको उसकी हिस्ट्री लेनी चाहिए प्रॉपर कि कब से शुरू हुई, ड्यूरेशन क्या है, पेन कैसा है, थ्रोबिंग है, चिमचिमायन है, वहां पे उसको तोदवत पेन है, डल पेन है, किस टाइप का पेन है। देन कोर्स एंड प्रोग्रेशन, कितने दिनों से बढ़ा है। तो पेशेंट पूरे सर में 8 दिन पहले मुझे ट्विस्ट हुआ था तब से पेन है, तो यू हैव टू आस्क कि तब से अभी तक पेन बढ़ा है या फिर कम हो गया है। तो सम पेशेंट विल कि पहले 3 दिन तो मुझे कुछ पता ही नहीं चला, लेकिन फिर धीरे धीरे दर्द बढ़ने लग गया और आज ये दर्द बहुत ज्यादा बढ़ गया है। एक सिनारियो ये होगा। दूसरा सिनारियो क्या होगा कि सर मुझे बहुत दर्द था, अभी 8 दिन पहले मैं चल भी नहीं पा रहा था, हिल भी नहीं पा रहा था, लेकिन अभी मुझे पेन थोड़ा सा कम हुआ है, अभी मैं थोड़ा बहुत चलने फिरने लगा हूं। सो ये जो चीज है, एग्रीवेटिंग फैक्टर क्या है, किससे अच्छा लगता है, किससे पेन ठीक होता है। सो ये एक्टिव लिसनिंग जो है आपकी, ये बहुत जरूरी है मैकेनिज्म ऑफ द पेन समझने के लिए, मैकेनिज्म ऑफ द इंजुरी समझने के लिए। देन एसोसिएटेड सिम्टम क्या है, रेडिएशन है, नमनेस है, टिंगलिंग है, वीकनेस है, स्टिफनेस है या अदर कोई स्टिफनेस है। बहुत दर्द होता है और फिर मूंगी आती है, बहुत दर्द आता है लेकिन फिर ऐसा थ्रोबिंग पेन होता है, कुछ तो भी होता है। तो मोस्ट कॉमन सिम्टम, क्या पता डॉक्टर बता नहीं पा रहा हूँ, लेकिन बहुत दर्द होता है और फिर पैरों में ऐसा कुछ तो भी होता है। तो दिस ऑल आर एसोसिएटेड। अब इसकी इम्पैक्ट लाइफ पे पड़ेगी कि भाई इसकी वजह से आपको एक क्वेश्चन किस तरह पढ़ना है, पूछना है कि भाई ठीक है ओके, तो आपको अगर ये दर्द है तो इस दर्द की वजह से आपको लाइफ में क्या प्रॉब्लम आ रही है, आप जो रोज के काम कर रहे हो उसमें क्या कर रहे हैं, कि आपको क्या सोना डिस्टर्ब हो रहा है, क्या नींद में दर्द की वजह से सो नहीं पा रहे हो, क्या करवट बदलने पे या पोजीशन चेंज करने पे रात को दर्द से नींद खुल जाती है, किस एक्टिविटी में आप नहीं कर पा रहे हो। पेशेंट बोलेगा सर मैं पहले 4 सीढ़ियाँ चढ़ लेता था लेकिन अभी 4 सीढ़ियाँ चढ़ना भी मुश्किल हो रहा है। तो क्या इम्पैक्ट हो रहा है। अच्छा, इसका इमोशनल इम्पैक्ट भी आपको समझना पड़ेगा कि पेशेंट को इमोशनल इम्पैक्ट क्या हो रहा है, क्योंकि कुछ दर्द पेशेंट के लिए अच्छे होते हैं,
कुछ दर्द इस तरह से अच्छे होते हैं कि पेशेंट बोल, क्योंकि अगर उस दर्द से मुक्ति हो जाए तो पेशेंट को काम करना पड़ेगा। एक मेरा बहुत ही इंटरेस्टिंग केस था, एक लड़का था जो लो बैक पेन के लिए आया, और बहुत सारी ट्रीटमेंट कर ली मैंने, बहुत सारा उसको ट्रीटमेंट किया, मेडिसिन दिए, मैनुअल ट्रीटमेंट किया, पंचकर्म किया। पेशेंट बोल रहा सर मुझे पेन दर्द ही कम नहीं हो रहा है, मुझे दर्द ही कम नहीं हो रहा है। फिर मुझे समझ में नहीं आया कि यार क्यों नहीं कम हो रहा है। तो मैंने फिर उसको पूछा कि क्या तुझे क्यों दर्द होता है, ऐसे लगता है? बोले क्या करूं? बोले सर मुझे सुबह उठना पड़ता है और मुझे मेरा भाई जो है वो दुकान पे बिठा देता है, और वो दुकान पे बैठे बैठे मुझे फिर दर्द होने लगता है। मैंने बोला तुझे दुकान पे बैठना अच्छा नहीं लगता है क्या? तो बोले नहीं सर, मुझे दुकान पे बैठना ही नहीं है, मुझे दूसरा बिजनेस करना है, लेकिन घर वाले मान नहीं रहे, वो जबरदस्ती मुझे उसी दुकान पे बैठने के लिए बोल रहे हो। तो ये था उसका इमोशनल इम्पैक्ट, क्योंकि वो इमोशनली उस दुकान पे बैठना नहीं चाह रहा था, और वह जैसे ही वो दुकान पे जाके बैठता था उसको दर्द शुरू होता था, जैसे ही वो दुकान से बाहर आता था, चलता फिरता था, तो उसको दर्द नहीं रहता था। सो ये इमोशनल इम्पैक्ट था। तो ये इमोशनल इम्पैक्ट जैसे हमने करेक्ट किया, वो पेशेंट को समझाया, उसके फैमिली को समझाया, एंड देन इट गेट सॉर्टेड आउट। पास्ट हिस्ट्री और ट्रीटमेंट बहुत जरूरी होती है, क्योंकि आजकल एवीएन के केसेस आपको पता है बहुत आ रहा है। एवीएन में हिस्ट्री तो बहुत जरूरी है कि कहीं पेशेंट ने स्टेरॉइड लिया है लॉन्ग स्टैंडिंग, चाहे वो स्किन डिसीज के लिए हो, चाहे कोविड पीरियड में हो, और बहुत सारी चीजें होती है बहुत बार। अभी एक केस मैं आपको और बताना चाहूंगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग केस है कि एक पेशेंट मेरे पास आए रात को। वैसे तो मेरा क्लिनिक 7 बजे बंद हो जाता है, लेकिन मुझे रात को 10 साढ़े 10 बजे कॉल आया। मैं जस्ट खाना खा के रिलैक्स ही कर रहा था, तो कॉल आया कि डॉक्टर साहब बहुत पेन है, और मुझे आपके एक दोस्त जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जन है उन्होंने नंबर दिया है, और उन्होंने आपके पास भेजा है कि आपको अगर ये तो आयुर्प्रभा में जाइए, डॉक्टर गावंडे को मिलिए। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैं बोला आइए क्लिनिक को। फिर मैं रात को 10 साढ़े 10 बजे क्लिनिक में देखने आया और पेशेंट को देखा। तो पेशेंट को मैंने जब देखा तो पेशेंट बोला कि मैं पूरी तरह से जकड़ चुका हूँ, मेरी पूरी बॉडी जकड़ चुकी है, मैं मूवमेंट भी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ। तो जब मैंने हिस्ट्री पूछी पेशेंट की, कोई हिस्ट्री नहीं थी, कोई ये नहीं, अचानक से ये 2-3 दिनों से हो रहा है। फिर वापस मैंने उनको डीपली हिस्ट्री पूछी कि आपको बुखार आया था क्या, आपको क्या ट्रीटमेंट ली थी आपने पिछले 2-4-6 महीने में। तब पेशेंट ने मुझे कहा कि मुझे 1-1.5 महीने पहले बहुत ज़्यादा सर्दी खांसी हो गई थी, और करीब करीब 8-10 दिन मेरी सर्दी खांसी वैसे ही थी, और उस वक्त मैंने एंटीबायोटिक और ट्रीटमेंट ली थी फिजिशियन के पास से, और उसके बाद में 3 दिन में ठीक हो गया था। उस वक्त मुझे बहुत बुखार भी था। तो ये हिस्ट्री के साथ मैंने उनको फिर उस वक्त तो कुछ ट्रीटमेंट किया, और दूसरे दिन फिर मैंने उनसे कुछ ब्लड टेस्ट करने के लिए बताया। तो उन ब्लड टेस्ट में एएसओ टाइटर जो था वो उसका पॉजिटिव था। एएसओ टाइटर जो होता है ये दिखाता है पर्टिकुलरली पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, यानी पेशेंट को स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हो गया था, और स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के बाद इसे पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल आर्थ्राल्जिया कहा जाता है। इसको अगर हमने आयुर्वेद में ये करना है तो ये गर्भविष जन्य आमवात है, ये विषाक्तता है। तो यहाँ पे आपको अगध की चिकित्सा करनी पड़ेगी, विषाक्तता की चिकित्सा करनी पड़ेगी। उसे हमने लंघन दिया, क्योंकि ये आमज अवस्था हो गई थी उसकी गर्भविष की वजह से, तो हमने उसको 2 दिन का कंप्लीट लंघन दिया, आम पाचक मेडिसिन दी, और उसे कंप्लीटली निर्वात रहने के लिए कहा। यानी उनको कहा कि जितना गर्म रह सकते हो, जितना पसीना जाएगा उतना आपको अच्छा लगेगा। और हमें समझ नहीं आ रहा था घर पे क्या बोलो, तो उसको पेशेंट ने खुद ही बोला कि डॉक्टर साहब मैं जब मेरी कार को अंदर से लॉक करके एसी बीसी सब बंद करके बैठता हूँ तो थोड़ी देर में मुझे बहुत गर्मी होती है, बहुत पसीना जाता है, और जैसे ही पसीना जाता है मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो दिस वाज द सिंपल डायग्नोसिस की पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन उनको था। तो हमने गर्भविषजन्य आमवात की चिकित्सा की, और पेशेंट गेट्स बेटर। सो दिस इज हाउ इट इज इम्पोर्टेंट कि आपको हिस्ट्री लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसी सेम पेशेंट मेरे पास आई थी जो कम से कम 4 या 5 ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाके आई थी, लेकिन उसे कहीं पे भी डायग्नोसिस नहीं हो रहा था।
then we have made the diagnosis and patient get better in 3 days. ओके, सो आयुर्वेद हिस्ट्री एंड लाइफस्टाइल भी आपने लेनी चाहिए कि अग्नि कैसा है, बावेल कैसा है, एपेटाइट, सोना कैसा है, लाइफस्टाइल कैसा है, प्रकृति, आपको प्रकृति परीक्षण करना बहुत जरूरी है. प्रकृति परीक्षण मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है. एडिक्शंस कुछ है क्या, क्योंकि टोबैको कॉजेज द स्टिफनेस इन मसल, टोबैको कॉजेज द स्टिफनेस, वेस्टिंग ऑफ मसल. तो इसकी वजह से उसे भी गर्विश की जैसे ही आपको चिकित्सा करनी पड़ेगी. बहुत बार पेशेंट जो टोबैको च्यूअर है या फिर जो स्मोकर्स हैं उनको आमवाद जैसे लक्षण आपको मिल सकते हैं. तो इफेक्टिव क्वेश्चनिंग प्रोटोकॉल आप कैसे रख सकते हैं? क्रिएट कंफर्ट. पहले तो पेशेंट को आराम से बिठाइए, उस आपका फोन और बाकी चीजें बाजू में रखते हैं. एक्टिव लिसनिंग कीजिए, एक ओपन क्वेश्चन कीजिए. जैसे मैंने कहा आपको कि अगर पेशेंट को पूछे कि आपको लैट्रिन कैसे हो रही है, अगर साफ हो रही है तो क्या लैट्रिन कभी कभी आपके पैन को या फिर कोमोड को स्टिक हो रही है क्या, आपको पानी ज्यादा डालना पड़ता है क्या? क्योंकि बहुत बार पेशेंट बोल देता है हाँ ठीक होती है, रोज तो लैट्रिन जाता हूँ, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन अगर आपको वहां पे साम मल की शंका है या आपको सामता लग रही है तो आपने डेफिनेटली उसको इस तरह के क्वेश्चंस पूछने चाहिए. डिटेल एक्सप्लोर कीजिए, क्लैरिफाई कीजिए कि जो पेशेंट बोल रहा है उसका अभी के पेशेंट के साथ कुछ क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है क्या. और फिर कनेक्ट पैटर्न कीजिए. जैसे मैंने आपको बताया कि 1 महीने पहले उसको बुखार आया था, सेम वाइज दैट लेडी की उसको 1 से 1.5 महीने पहले बुखार आया था, फिर कुछ नहीं था, 1-1.5 महीना अच्छी थी और देन पेशेंट को अचानक से तकलीफ हो गई है. तो दिस इज कॉल्ड एज पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल आर्थाल्जिया. सो फॉर्म क्लिनिकल, और इससे क्या होगा कि हम एक क्लिनिकल हाइपोथेसिस फिर बना पाएंगे कि पेशेंट को पेन क्यों है. और जब भी दर्द के बारे में बात करें तो ऐसा मत पूछिए पेशेंट को कि दर्द कितना है, बहुत कम है, ज्यादा है. हमेशा एक आदत बनाइए कि ये वास्ट स्केल है. वास्ट स्केल का मतलब वर्बल असेसमेंट स्केल. तो इस वर्बल असेसमेंट स्केल का पेशेंट को पूछिए कि आपको जो दर्द है अभी जिस कंडीशन में आप क्लिनिक में आए हैं, उस कंडीशन में आपको जो दर्द है वो 10 आउट ऑफ 10 है, तो अभी ट्रीटमेंट करने के बाद कितना ठीक हो रहा है. तो वो आपको आपके ट्रीटमेंट की इफिकेसी भी बताएगा. कि अगर पेशेंट बोल रहा है कि सर मुझे अभी पिछली बार से या कल से मुझे 50% आराम है या 10 आउट ऑफ 5 मुझे ठीक है, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि आई एम गोइंग इन द राइट वे. अगर पेशेंट बोल रहा है कि नहीं सर कल 10 आउट ऑफ 10 था, आज थोड़ा सा 8 आउट ऑफ 10 है, तो you have to check again, you have to reassess the patient, and after reassessing you can come to an conclusion. So always use this VAS scale, and these pictures are called as the wrong Becker's pain scale. So ये भी यूज कर सकते हैं आपको अगर पेशेंट को नंबर नहीं समझ में आ रहा है तो. देन स्पर्श चिकित्सा में फर्स्ट थिंग आपने देखना चाहिए टेम्परेचर, टेक्सचर, टेंडरनेस, नाड़ी, स्वेलिंग और मसल टोन या स्पैजम. बहुत सारे लोग केवल नाड़ी परीक्षा करते हैं तो वो दैट इज द देयर एक्सपर्टाइज. लेकिन इन जनरल जब आप पेन में प्रैक्टिस कर रहे हो, मस्कुलोस्केलेटल में करना है, तो आपको ये तीनों भी चीज करना बहुत जरूरी है कि पेशेंट के जो पेनफुल पॉइंट है, ये पेनफुल एरिया है, वहां का टेम्परेचर कैसे है, वहां पे कोई इन्फ्लामेशन तो नहीं है, क्या वो स्मूथ है, रफ है, फ्लॉपी हो चुका है, क्या वहां पे स्किन थिक लग रही है या फिर स्पर्शा सहत्व लग रहा है पेशेंट को, लोकलाइज टेंडरनेस है, ट्रिगर पॉइंट अगर वहां पे है, पेन रिप्रोडक्शन हो रहा है कि अगर कहीं पे जगह दबाने से पेशेंट बोल रहा है कि दर्द बढ़ रहा है, तो ये क्या देगा ना आपको, एक आमस संप्राप्ति देगा. अगर पेशेंट को पॉलीआर्थ्राल्जिया है और आप अगर पेशेंट की उंगलियां भी दबा रहे हो, कुछ भी दबा रहे हो, पेशेंट बोल रहे हैं कि मुझे पेन हो रहा है, तो इसका मतलब वो आमस संप्राप्ति है. केवल स्पर्श चिकित्सा से आप उसको समझ सकते हैं कि इसको आमस संप्राप्ति है, आपको उसको निराम करना है. नाड़ी हमें देखनी है, दोष धातु सारत्व देखना है आपको. अगर नहीं भी आ रही है तो नाड़ी दोनों तरफ से देखना है, मॉडर्न भी देखना है, आयुर्वेद भी नाड़ी देखना है. उसके बाद में स्वेलिंग देखिए कि स्वेलिंग का डेप्थ कितना है, क्या पिटिंग इडिमा है, नॉन पिटिंग इडिमा है, क्या वहां पे तोद लग रहा है, शोथ लग रहा है, या आपको चेक करना पड़ेगा जो कंसिस्टेंसी कैसी है उसकी, यानी पूरा का पूरा पैर सूजा हुआ है या टिपिकल एक ही पर्टिकुलर पोजीशन में सूजा हुआ है. ये चीजें हमें वहां देखनी होगी.
देन मसल टोन एंड स्पैजम। क्या मसल हमेशा इसको अपोजिट साइड में कंपेयर कीजिए, यानी अगर आप बाइसेप देख रहे हो तो राइट साइड का बाइसेप देखिए कि कैसा है और लेफ्ट साइड का देखिए, उनको कंपेयर करके देखिए, उनमें अगर कुछ डिफरेंस ध्यान में आ रहा है, अगर पेनफुल वाला मोर टाइट लग रहा है तो इसका मतलब वो क्रॉनिक स्पैजम में है, तो आपको उसको क्रॉनिक स्पैजम के लिए स्नेहन स्वेदन और ये चीजें करनी पड़ेगी। तो इसका कैसे होना चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ग्रीट एंड एक्सप्लेन करना चाहिए पेशेंट को कि हेलो सर, मैं आपकी ये चीजें चेक करने वाला हूँ, या इफ यू आर अ फीमेल एंड यू आर टू चेक द मेल पेशेंट और वाइस वर्सा, आपको उनकी कंसेंट लेनी चाहिए, वर्बल कंसेंट लेनी चाहिए कि मुझे यहाँ पे आपको ऐसा ऐसा चेक करना है, सो कैन आई चेक इट। तो ये एक क्लिनिकल और एक इथिक्स भी होता है और थोड़ा मेडिको लीगली भी जरूरी होता है। तो लाइट पाल्पेशन करना चाहिए, डीप पाल्पेशन अलग अलग करना चाहिए, देन टेंडरनेस आपको देखना चाहिए, वहां पे आपको पल्सेशन फील हो रहा है क्या, पर्टिकुलरली जगह पे वहां पे आपको पल्सेशन फील हो रहा है क्या, ये भी आपने चेक करना चाहिए। चेक मसल टोन एंड स्पैजम जैसे मैंने बताया, और फिर इसको कोरिलेट कीजिए दर्शन और स्पर्शन के साथ, प्रश्न के साथ में। तो ये जब तीनों चीजें हम करेंगे तो वी विल गो टू द प्रिसाइज डायग्नोसिस। अब इसके बाद में हमने क्या करना चाहिए कि एक धातु विचार भी इसमें करना चाहिए पेन मैनेजमेंट में। तो ये भी हम दर्शन स्पर्शन प्रश्न से तो कर ही सकते हैं कि जैसे रस धातु है, अगर रस धातु जो रिप्रेजेंट करता है मॉडर्न साइंस में वो फ्लूइड एंड न्यूट्रिशन, क्या पेशेंट को डिहाइड्रेशन है, क्या न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है, तो उसको नरिशमेंट, हाइड्रेशन और जनरल फटीक फील होगा पेशेंट को, कि थकावट महसूस होगी, ये होगा। तो फिर आप समझ सकते हैं कि भाई इसको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है या फिर रस धातु का क्षय है। अगर ब्लड में ये होगा तो पेशेंट का सर्कुलेटरी प्रॉब्लम होगा, थ्रोबिंग पेन होगा पेशेंट को, पेशेंट बोलेगा कि एकदम ऐसा लग रहा है कि वो पार्ट काट देना या उस पार्ट को निकाल देना, इतना इरिटेटिंग पेन हो रहा है। तो दैट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द रक्त धातु। तो वहां पे बर्निंग रहेगा, रेडनेस रहेगा, तो रक्त धातु जैसे अगर स्वेलिंग, जैसे आपने दर्शन स्पर्शन में देख लिया कि पेशेंट बोल रहा है कि घुटने का आजू बाजू में बर्निंग है और बहुत ज्यादा रेडनेस या फिर वार्मथ आपको लग रहा है, तो इसका मतलब रक्त धातु वहां पे दूषित है। तो आपको जो भी चिकित्सा करनी है वो रक्त धातु के हिसाब से करनी है। सेम विद द मांस। तो मांस में क्या आएगा, मांस धातु में सारी सॉफ्ट टिश्यूज आएंगी, कनेक्टिव टिश्यूज आएंगी, मसल्स आएंगी, क्योंकि वैसे भी सीरा कंडरा हम मांस और रक्त के ही हम उपधातु मानते हैं। तो मसल पेन, स्पेजम, स्टिफनेस, मायोफेशियल पेन, यानी पेन बहुत बार पेशेंट बोलेगा कि मैंने कुछ उठा लिया और एकदम से दर्द हो रहा है, तो दैट इज मोस्ट ऑफ द टाइम इज द मायोफेशियल पेन। मेद में क्या है ना, फैट एंड लुब्रिकेशन, कटकट की आवाज आ रही है, शोल्डर जब भी हिलाता हूं तो कटकट आ रही है, तो यहाँ पे मेद धातु का वहां पे आपको क्षय मिलेगा या मेद धातु में ये मिलेगा। मेटाबॉलिक साइकिल डिस्टर्ब मिलेगी पेशेंट की। देन अस्थि धातु में क्या होगा ना कि पेशेंट को इंस्टेबिलिटी लगेगी और डीप और लोकलाइज डल पेन रहेगा। दूसरी बात, एक्सरे में या इसमें आपको डिजनरेशन मिलेगा, तो आपको अस्थि व स्त्रोतस अस्थि धातु के बारे में सोचना है। मज्जा में क्या होगा कि मेन पेन जो होगा न्यूरोलॉजिकल होगा, चिमचिमायन है, नरिशमेंट चिमचिमायन है या फिर नमनेस है, पेशेंट बोल रहा है कि सुक्ति है वहां पे, स्पर्शा सहत्व है या फिर स्पर्श को पता ही नहीं चल रहा है, रिफ्लेक्सेस वीक है, तो मज्जा धातु, मज्जा के इससे आपको यूज करना है। शुक्र धातु में आपको क्या होगा कि पेशेंट को फटीक महसूस होगा, पेशेंट बोलेगा, पेशेंट बहुत बार पेन के साथ साथ शीघ्र पतन की भी कंप्लेंट करता है या और अदर शैथिल्य की कंप्लेंट करता है, या फिर बोलता है कि मुझे थकावट या मुझे ताकत कम हो गई ऐसा। तो ये सारी चीजें जब होगी तो आपको इन सप्त धातुओं का भी विचार दर्शन स्पर्शन पर प्रश्न परीक्षा करते करते ये करना है। तो क्लिनिकल क्वेश्चन क्या होगा कि विच धातु इज प्रीडोमिनेंटली इन्वॉल्व इन द पेशेंट पेन। तो आप वेदना तक कैसे पहुंचोगे कि किस धातु की वजह से प्रोमिनेंटली पेन है, और वो क्यों मैटर करता है, क्योंकि द सेम सिम्टम कैन बी अराइज फ्रॉम द डिफरेंट टिश्यू। धातु विचार गाइड्स अ एक्यूरेट डायग्नोसिस एंड इफेक्टिव ट्रीटमेंट। क्योंकि आपको वो ट्रीटमेंट क्यों, वो पेशेंट, पर्टिकुलर पेशेंट को दर्द क्यों हो रहा है, और सेम पेशेंट सेम पैटर्न में दूसरी जगह पे भी पेन हो सकता है। डॉक्टर साहब ये राइट वाला घुटना दुखता है और लेफ्ट वाला कंधा भी पेन कर रहा है,
तो जरूरी, अगर आपको ठीक से आपने दर्शन स्पर्शन परीक्षा और उसको धातु विचार के साथ जोड़ा तो ये ध्यान में आएगा कि भाई दोनों का रीजन एक ही है और आप उसको चिकित्सा पर्टिकुलरली कर पाओगे। देन डिफरेंशिएट द टिश्यू, डिफरेंट पैटर्न, सेम पेन, डिफरेंट कॉजेस। एक जैसे डॉक्टर साहब, मैं 6 महीने पहले आपके पास आया था, कमर दर्द थी, आपने ट्रीटमेंट किया, ठीक हो गया, लेकिन आज वापस वैसे ही कमर दर्द है। जरूरी नहीं है कि उस वक्त जो पैथोलॉजी थी, उस वक्त जो धातु इन्वॉल्वमेंट था, आज भी वही धातु इन्वॉल्वमेंट हो। तो सेम पेन रह सकता है लेकिन उसका कारण डिफरेंट रह सकता है। तो इसीलिए एसेस द टिश्यू, ट्रीट द कॉज। तो ये जैसे आप मॉडर्न साइंस के हिसाब से भी इनको टिश्यू में अगर बोन में प्रॉब्लम है तो आप अस्थि वस्त्र तो इसकी चिकित्सा कीजिए, अगर सीरा कंडेरा यानी लिगामेंट टेंडॉन्स में प्रॉब्लम है तो आप रक्त और मांस धातु की चिकित्सा कीजिए। ये आपको कंसेप्ट क्लियर आएगा जो कि अपुनर्भव की तरफ आपको लेके जाएगा। देन इसी के साथ सबसे जरूरी जो बेसिक पार्ट होती है वो पेशेंट का जो दोष विचार है, कौन सा दोष प्रकोप है। देखिए बहुत बार ऐसी केसेस आपने देखी होगी कि साइटिका के लिए अगर मैं पूछ लूं किसी से कि भाई साइटिका के लिए अच्छा आयुर्वेदिक मेडिसिन कौन सा है, तो बहुत सारे लोग आंसर दे देंगे कि भाई पाल्सी न्यूरॉन है, पाल्सी न्यूरॉन है। आई एम नॉट सेइंग कि पाल्सी न्यूरॉन बुरा ड्रग है, मैं सिर्फ एक या समीर पन्नाग रस है या एकाग्रवीर रस है ऐसे बोल देंगे। लेकिन अब जब आप ये देखोगे कि ये सारे के सारे जो द्रव्य है, ये सारे के सारे जो औषधि है, ये उष्णवीर्य है। लेकिन अगर साइटिका जैसी तकलीफ या गृध्रसी जैसी तकलीफ एक पित्त प्रधान व्यक्ति को हो रही है, जिसकी प्रकृति पित्त है, जिसके बाकी के एसोसिएटेड सिम्टम्स में आपको पित्त दिख रहे हैं, उसको अगर आप पाल्सी न्यूरॉन या फिर समीर पन्नाग रस ऐसी उष्ण रस औषधि दोगे तो उसको आराम नहीं मिलेगा, उसका पित्त और बढ़ेगा और पेशेंट कहेगा कि डॉक्टर साहब मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। तो ये समझने के लिए हमें उसके साथ दोष का भी विचार करना चाहिए। एक क्विक कंसेप्ट मैंने आपको बोला है कि अगर दर्द जो है वो शार्प होगा, सुई या चुभाए जैसा होगा और पेशेंट बता नहीं पाएगा कि कभी ऐसे दुखता है कभी वैसे दुखता है, तो ये जनरली ये वात प्रधान रुजा है। जनरली इसमें जो फील रहेगा पेशेंट का वो कोल्ड रहेगा, जो क्वालिटी रहेगी ड्राई रहेगी, रफ रहेगी, यानी पेशेंट बोलेगा कि कर कर आवाज होता है, सशब्द संधिशूल रहेगा। पेशेंट को वहां पे स्वेलिंग या तोद नहीं मिलेगा अनलेस एंड अदरवाइज देयर संधिपातद अगर वो है, मैं पीवर वात की बात कर रहा हूँ। तो इसमें क्या करेगा कि पेशेंट बोलेगा सर थोड़ा सा भी चल फिर लेता हूँ तो दर्द बढ़ जाता है, थोड़ा सा भी मेहनत हो गई तो मेरा दर्द बढ़ जाता है, और रूटीन जो है मेरा इरेगुलर है। तो ये जो चीजें है ये वात में आपको जनरली मिलेंगी। जो पित्त प्रीडोमिनेंट पेन है या जिस पेन का जनरेटर पित्त है, उसमें बर्निंग रहेगी, स्टिंगिंग रहेगी, थ्रोबिंग रहेगी, जनरली हॉट सेंसेशन रहेगा। पेशेंट अगर पॉलीआर्थराइटिस है तो पेशेंट बोलेगा कि मुझे बुखार जैसा लगता है, अंदर से गर्म लगता है, या जिसको हड्डी बुखार या हड्डी ताप भी मराठी में कहते हैं। इसकी क्वालिटी क्या रहेगी, शार्प रहेगा, इंटेंस रहेगा, पेशेंट बहुत रहेगा, पेशेंट डिस्टर्ब रहेगा कि सर नींद नहीं लग रही है, मैं कहीं पे फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, अदर। इसमें एग्रीवेटिंग फैक्टर की सर जब चिड़चिड़ होती है, घर से आता हूँ तो दर्द बढ़ जाता है, या गर्मी होती है धूप काले में ये बढ़ जाता है, और इसमें इन्फ्लामेशन रहने के चांसेस भी ज्यादा है। कफ में क्या रहेगा, डल पेकिंग रहेगा, भारीपन लगेगा, हेवी एकिंग रहेगा, पेशेंट दुखते रहता है, बहुत तकलीफ नहीं है लेकिन कंटिन्यूस दुखते रहता है। तो ये जो सिम्टम बताएगा ये कफ के टेम्परेचर जो रहेगा वो कोल्ड रहेगा, आगे यानी वहां का जो लोकल टेम्परेचर है वो कोल्ड रह सकता है। उसके बाद में पेशेंट की जो क्वालिटी रहेगी वो हेवी रहेगी, स्टेबल रहेगी, मॉर्निंग स्टिफनेस रहेगा, मॉर्निंग हेवीनेस रहेगा, पेशेंट सिकनेस बोलेगा, पेशेंट बोलेगा अगर मैं 10-15 मिनट भी बैठ जाऊं तो उठने वक्त तकलीफ होती है। ये सारे कफस संप्राप्ति है, आपको वहां पे कफस दिखना है। और आपको पता है कफ पित्त जब मिल जाता है तो आमच अवस्था भी निर्माण कर सकता है। तो जनरली आराम से पेशेंट का ट्रीटमेंट बढ़ेगा, इनएक्टिविटी से बढ़ेगी, ठंडे खाने से बढ़ेगी, या फिर ज्यादा खाने से बढ़ेगी। ये पेशेंट टिपिकली आपको बोलेगा कफ का कि डॉक्टर साहब मैं 15 मिनट भी बैठ जाता हूँ तो उठते वक्त तकलीफ होती है। ओके, सो हम जैसे दोषों को सोचेंगे तो हम पेन का पैटर्न भी अलग अलग देख पाएंगे, और फिर इसकी मैनेजमेंट भी हम अलग अलग से प्लान कर पाएंगे। हम प्रोटोकॉल ही सेट करना है तो हमें वातज पित्तज कफज और उसके प्रोटोकॉल सेट करना पड़ेगा, केवल एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल सबके लिए काम नहीं पड़ेगा।
सो आइडेंटिफाई द दोषा, ट्रीट द कॉज एंड रिस्टोर द बैलेंस। अब इसके साथ साथ आपको स्त्रोतस और स्थान के बारे में भी आपको विचार करना पड़ेगा कि जैसे स्त्रोत वहां की कोई स्त्रोतस का यह है, रक्त व स्त्रोतस है, रस व स्त्रोतस है, तो जनरली नरिशमेंट में और सर्कुलेशन में अगर कहीं पे प्रॉब्लम आ रहा है तो वो आपको रस व स्त्रोतस पे ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। मांस व स्त्रोतस में जब मसल और सॉफ्ट टिश्यू जैसे लिगामेंट टियर है, कुछ बर्साइटिस है, ऐसी जो केसेस है उसमें आपको मांस व स्त्रोतस की चिकित्सा करनी पड़ेगी। बोन में तो आपको अस्थि व स्त्रोतस की चिकित्सा करनी पड़ेगी जिसमें डिजनरेशन है, डिहाइड्रेशन है उसमें। मज्जा व स्त्रोतस में जहाँ पे आपको नर्वोटिक सिम्टम्स है जैसे नमनेस है, टिंगलिंग है, ये सारी चीजें हैं, उसमें आपको मज्जा व स्त्रोतस पे ध्यान देना है। और संधि व स्त्रोतस यानी जो जॉइंट स्पेसेस है, तो इम्बैलेंस इन स्त्रोतस लीड्स टू ब्लॉकेज और द डिस्फंक्शन ऑफ द पेन। यानी क्या होगा कि स्त्रोतस में अगर इम्बैलेंस हो जाएगा तो स्त्रोतावरोधजन्य व्याधि उत्पन्न होगा, स्त्रोतावरोधजन्य रुझा उत्पन्न होगी, स्त्रोतावरोधजन्य वात प्रकोप वहां पे आपको देखने को मिलेगा। तो वहां पे स्त्रोतोशोधन जरूरी है। स्थान का जब विचार करेंगे हम तो ऊर्ध्व जत्रुगत है, पृष्ठ प्रदेशीय, कटी प्रदेशीय, संधि प्रदेशीय, पाद प्रदेशीय, तो इन चीजों को भी आपको इन्फॉर्म करना है। तार उड़ून जाना तो सवाल सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो the best, the pain is a better understand when we know which structus is affected and where the stan is involved। तो हम जब इसको असेसमेंट करेंगे तो क्या होगा कि हम जो स्त्रोतस है जिसको जनरली चैनल्स बोला जाता है उसका फ्लो हम मेंटेन कर पाएंगे, और स्पेसिफिक लोकेशन को अगर हम ट्रीट करते हैं तो हमें इंस्टेंट भी पेन मैनेजमेंट होगा और लॉन्ग स्टैंडिंग भी होगा। अगर इन सबको हम सिंक्रोनाइज या एक इसमें लाके अगर हम उसको ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, केवल किसी एक ही पर्टिकुलर लाइन ऑफ थॉट से सोचेंगे, तो हो सकता है कि हम उस पेन का मेन रीजन, मूल कारण मिस कर दें। अब इन त्रिविध परीक्षा को हमें क्या करना है कि कंप्लीट होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मॉडर्न के साथ भी हमें कोरिलेशन करना है, दूसरी और हमारी क्लिनिकल भी करना है। यानी दर्शन में हमको ऑब्जर्वेशन करना है, पोस्चर, मूवमेंट, एक्सप्रेशन। स्पर्श में हमको टेम्परेचर, टेक्सचर, टेंडरनेस देखना है। सिम्टम्स में हिस्ट्री, लाइफस्टाइल, इम्पैक्ट सुनना है। और कोरिलेट फाइंडिंग्स, आइडेंटिफाई द रूट कॉज, दोष, धातु स्त्रोतस और पेन मैकेनिज्म। यानी आपको इसमें इंजुरी मैकेनिज्म पे भी मैं बहुत बार बात करता हूँ कि मैकेनिज्म ऑफ इंजुरी को आपको समझना है। तो मैकेनिज्म ऑफ इंजुरी जब आप समझ जाओगे तो उसको ट्रीट करना बहुत आसान रहेगा। तो फिर हम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं कि हम इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट बना सकते हैं, उसमें क्या आयुर्वेद ट्रीटमेंट देना है ये कर सकते हैं, लाइफस्टाइल गाइडेंस पेशेंट को दे सकते हैं, और उसका रिहेबिलिटेशन यानी पेन से रिकवरी की तरफ भी हम ले जा सकते हैं। ओके, सो सी, फील, आस्क, कोरिलेट एंड ट्रीट। सो ऑब्जर्व कंप्लीटली, फील precisely, ask wisely and treat effectively. So this is the success behind the every successful treatment. अब अगर आप किसी मॉडर्न साइंस में जाते हो, मॉडर्न डॉक्टर के पास भी जाते हो, तो वो भी वही करता है, बस हमको उसको सिंक्रोनाइज करना है। जैसे दर्शन परीक्षा है, तो दर्शन परीक्षा में जो मॉडर्न क्लिनिकल मेथड में क्या करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, पोस्चरल असेसमेंट करते हैं, गेट एनालिसिस करते हैं, रेंज ऑफ मोशन चेक करते हैं, ऑब्जर्वेशन ऑफ द स्वेलिंग डिफॉर्मिटी करते हैं, एंड व्हाट वी सी विथ आईज इक्वल टू मॉडर्न इंस्पेक्शन, वन एंड द सेम। स्पर्शन चिकित्सा में भी द सेम थिंग, पाल्पेशन, टेंडरनेस, टेम्परेचर असेसमेंट, मसल टोन, रेजिस्टेंस, जॉइंट प्ले यानी मोबिलिटी, जिसको हम ये करते हैं। स्पेसिफिक स्पेशल टेस्ट एज नीडेड, लाइक SLR टेस्ट होगी, फेबर टेस्ट होगी, एंटीरियर डॉवर टेस्ट नी के लिए होगी, फ्लेक्शन एक्सटेंशन टेस्ट सर्वाइकल के लिए होगी, ये स्पेसिफिक टेस्ट हमें करना है। सो व्हाट वी फील विथ हैंड इक्वल टू मॉडर्न पाल्पेशन। प्रश्न परीक्षा में क्या करना है आपको, हिस्ट्री टेकिंग है, पेन असेसमेंट है, फंक्शनल असेसमेंट है, रेड फ्लैग स्क्रीनिंग है, साइकोलॉजिकल हिस्ट्री है, और क्वालिटी ऑफ लाइफ असेसमेंट है।
तो ये भी सारी चीजें ऑलरेडी आयुर्वेद में आ चुकी है। यही सब चीजें मॉडर्न साइंस में भी प्रिसाइजली की जाती है और फिर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाते हैं। लेकिन हम आजकल क्या करते हैं कि ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाने की या ट्रीटमेंट पे कंक्लूजन तक बनना पहुंचने की बहुत जल्दी करते हैं, तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा रुकना होगा। तो व्हाट इज द कंक्लूजन फॉर द डे कि दर्शन, स्पर्शन, प्रश्न, धातु विचार, दोष विचार, स्त्रोतस और स्थान का कोरिलेशन कीजिए और इंडिविजुअलाइज चिकित्सा की तरफ ध्यान दीजिए रेदर देन इंस्टेंट पेन मैनेजमेंट। नॉट एवरीथिंग फिट्स इन अ सेम बॉटल। हर चीज के लिए एक ही बॉटल यूज करना हमें बंद करना पड़ेगा। सो फ्रॉम असेसमेंट टू accurate effective treatment you have to integrate, interpret and individualize the treatment. So एक सिंपल फ्लो चार्ट मैंने बनाया है, मेरे क्लिनिक में भी मैं फॉलो करता हूं और आप सबको भी लिए भी ये फ्लो चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूं कि पेशेंट को देखिए, ग्रीट कीजिए, उसके साथ कनेक्ट कीजिए ताकि वो आपको अच्छे से हिस्ट्री दे पाए, आपको अच्छे से डिटेल में बता पाए। आप उसको अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए कि किस तरह से आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हो, उसका पोस्चर, गेट, कहीं पे सूजन है, मसल्स का पैटर्न। उसके बाद में आप उसको स्पर्शन कीजिए, पाल्पेशन कीजिए, टेंडरनेस कहीं पे है, टेम्परेचर है, मसल टोन में कोई डिफरेंस है क्या कंपैरेटिवली, स्वेलिंग है क्या, फिजिकल एग्जामिनेशन कीजिए। इसके लिए हमने हमारे मॉर्निंग विद आयुर्वेदा में बहुत सारे लेक्चर्स लिए हैं कि शोल्डर के असेसमेंट कैसे करना चाहिए, साइटिका का असेसमेंट कैसे करना चाहिए, या लंबर पेन का असेसमेंट कैसे करना चाहिए, नी का असेसमेंट कैसे करना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे असेसमेंट टूल्स आप यूज कर सकते हो फिजिकल एग्जामिनेशन में। एनालिसिस कीजिए अभी इन पांचों चीजों का और उसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाइए कि हम क्या क्या चीजें इसमें हो सकता है। मॉडर्न क्लिनिकल फ्रेमवर्क में आप एनाटॉमी पैथोलॉजी को समझिए, एविडेंस बेस्ड अंडरस्टैंडिंग समझिए, यानी मसल्स है तो मसल्स का इंसर्शन ओरिजिन के साथ साथ पर्टिकुलर मसल का क्या फंक्शन होता है, कौन सी मसल फ्लेक्शन करती है, कौन सी मसल स्टेबिलाईज करती है, कौन सी मसल पर्टिकुलर पोजीशन में रोटेट करती है एक बॉडी पार्ट को, इसको समझिए। आयुर्वेदिक फ्रेमवर्क डिसाइड कीजिए कि त्रिविध परीक्षा कीजिए, उसमें किस धातु में किस दोष का प्रादुर्भाव हुआ है, किस दोष का क्षय प्रकोप या क्षय हुआ है और इसकी तरह से किस स्थान पे वो रिलेटेड है, और इसके साथ में फिर आप उसको ट्रीटमेंट इंप्लीमेंट कीजिए कि आयुर्वेद थेरेपीज आप कर सकते हैं, पंचकर्म कर सकते हैं, मैनुअल थेरेपीज, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल करेक्शन, फिर आप उसको अग्निकर्म, वेदन कर्म, रक्त मोक्षण जो भी हो आप आपके हिसाब से ट्रीटमेंट कीजिए। लेकिन फर्स्ट उसे असेसमेंट कीजिए, आइडेंटिफाई द रूट क्लास, प्लान द इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट और फॉलो अप विद द रीअसेसमेंट। ट्रीटमेंट करने के बाद 4 दिन बाद 5 दिन बाद पेशेंट को वापस बुलाइए, प्रोग्रेस मॉनिटर कीजिए। उस ट्रीटमेंट में अगर कुछ तकलीफ हो रही है, पेन असेसमेंट स्केल का ये लीजिए, अगर पेशेंट बोल रहा है कि मुझे 10 आउट ऑफ 5 अच्छा लग रहा है, तो आप फिर से असेस कीजिए कि ये 5 जो बचा हुआ पेन है वो अब कहाँ से आ रहा है। देन फिर आप उसको ट्रीटमेंट मॉडिफाई कर सकते हो और आप ऑप्टिमल रिकवरी, पेशेंट की ऑप्टिमल आउटकम आप ले सकते हो। तो सिस्टमिक एग्जामिनेशन लीड्स टू द एक्यूरेट डायग्नोसिस, टारगेटेड ट्रीटमेंट एंड बेटर आउटकम्स। So this was the key takeaway. Trivid Pariksha, the foundation of accurate pain management. Okay, it will be repeated. So thank you very much. Thank you very much, IIAS. Thank you very much, Ayurved Foundation, all the stakeholders and all the participants who have listened me calmly and patiently. Sir, Yes. sir, how to join Morning with Ayurveda? मॉर्निंग विद आयुर्वेदा इज ऑलरेडी, ये जो ग्रुप में आप ज्वाइन हुए हैं उसमें ही लिंक आएगा शायद, और डॉक्टर हिडा सर, इफ ही इज देयर, ही विल सेंड द नंबर। Okay, sir. ओके, Thank और you, sir. यू कैन ज्वाइन अर्वाचीन आयुर्वेद गुरुकुल, अर्वाचीन आयुर्वेद गुरुकुल group. Just a second, I will tell the number. सर ग्रुप में लिंक सेंड कर दीजिएगा। Yeah, I will tell them to send the group link. Okay.
हाँ जी, थैंक यू सर। ओके, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। यस। सर मेरा भी सर एक डाउट था। जैसे सर इससे रिलेटेड नहीं है, एक सर अलग डाउट है। जैसे सर मैं जैसे ट्रीटमेंट करता हूँ अभी, तो सर मेरा एक डाउट ये है कि सर जब हम एक्लस टेंडन होता है जो, उसमें सर हम अग्निकर्म नहीं करते हैं, जबकि वो भी सर टेंडिनाइटिस है। लेकिन सर गोल्फर्स एल्बो या टेनिस एल्बो में भी टेंडिनाइटिस है, लेकिन सर वहां बोलते हैं कि करना है। तो सर ऐसा क्यों, दोनों जब टेंडिनाइटिस है तो? सर यही मैं बोल रहा हूँ कि यू आर स्पीकिंग अगेन अबाउट द ट्रीटमेंट ओनली। जी पहली बात मुझे बोलना है कि आपको अकेलिस टेंडनाइटिस या अकेलिस टेंडन में आपको अग्निकर्म करना क्यों है? पेन मैनेजमेंट के लिए सर वो। हाँ, तो क्यों पेन हो रहा है? उसमें तो सर जैसे, जी सर। ये सारी चीज मैंने अभी तक जो हमने आज डिस्कस किया, यही चीज किया कि आपको अगर लग रहा है कि अकेलिस टेंडन में पेन है, तो क्यों पेन है? जी सर। सर मैंने इसका जवाब मतलब सर खूब बहुत ढूंढने का प्रयास किया, तो सर मुझे मतलब जो समझ आया कि ये कंडरा मतलब है वो टेंडन जो कि रक्त की उपधातु है, तो वहां पे पित्त या रक्त की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। तो अगर हम अग्निकर्म करेंगे तो उल्टा मतलब प्रॉब्लम बढ़ सकता है। नहीं नहीं, वो तो आप अग्निकर्म के बारे में बोल रहे हो, हम जी ट्रीटमेंट के सर। बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं सर। जी हम सर। बात कर रहे हैं डायग्नोसिस के बारे में। जी सर। तो अकेलिस टेंडन में पेन क्यों होगा? इंफ्लामेशन की वजह से सर, टेंडेंस जो है वहाँ क्यों के। क्यों इन्फ्लामेशन आएगी? सर ये तो नहीं, हाँ, नहीं सर। यही यही जो सोच है हमारी, यही सोच को हमें ब्रॉड करना होगा। देखिए, अब मैं आपको पूछूंगा, आई डोंट वांट टू ऑफेंड समबडी, कि अकेलिस टेंडन किससे बना है, कौन सी मसल्स इन्वॉल्व है उसमें? हम सबको पता है कि जो टेंडन होता है, वो टेंडन क्या करता है, मसल को बोन से अटैच करता है। बोन से कनेक्ट करता है, जी हाँ, तो कौन सी मसल को बोन से अटैच कर रहा है? वेरी स्मार्ट आंसर रीना मैडम, काफ मसल, गैस्ट्रोनिमस। गुड डॉक्टर रिचा, गुड। बट कौन सी गैस्ट्रोनिमस? अच्छा चलिए, मुझे नंबर बता दीजिए, कितनी मसल्स से बनता है अकेलिस टेंडन? 2? नो, एक्चुअली बोथ द गैस्ट्रोनिमस, द लैटरल गैस्ट्रोनिमस, मीडियल गैस्ट्रोनिमस एंड सोलियस, इन तीन मसल्स को एक होके अकेलिस टेंडन बनता है, एंड देन इट अटैचेस टू द कैल्किनियल्स। ओके, तो हमें वहां अग्निकर्म क्यों करना है? पहली चीज तो, अगर इन मसल्स में कोई स्ट्रेच है, उस इन मसल्स में अगर कोई इम्बैलेंस है, तो अकेलिस टेंडन पे खिंचाव आएगा और वहां पे पेन होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, पेन कभी भी टेंडन्स में होता ही नहीं है। गोल्फर्स एल्बो या टेनिस एल्बो में भी इट इज द, जब आपने गोल्फर्स एल्बो बताया, या सॉरी, आपने क्या कहा था, टेनिस एल्बो, टेनिस एल्बो का, टेनिस दोनों। तो जी टेनिस सर। एल्बो का जो मेडिकल नेम है वो क्या है? लेटरल एपिकोंडाइलिटिस। तो वहां पे टेंडन कहाँ आया? इट इज एपिकोंडलाइटिस, इट इज नॉट टेंडनाइटिस। जी कुछ सर, लेकिन कुछ सर समझ जब में पढ़े आया? थे तो उसमें सर। जी कुछ सर। समझ में आया आपको? दो चीजों में फर्क है, टेंडनाइटिस एंड एपिकोंडाइलिटिस। कोंडलाइटिस। तो वहां पे कोंडाइल पे स्वेलिंग होता है, टेंडन पे स्वेलिंग नहीं होता है, बिकॉज ऑफ द टेंडन, जो कि रब होता है, प्रोनेटर मसल जो होती है, वो प्रोनेटर मसल का जो टेंडन होता है, वो लैटरल एपिकोंडाइल पे जब वो रब होता है, बहुत बार फ्रिक्शनाइज होता है, तो उस एपिकोंडाइल पे ये आता है, उस एपिकोंडाइल पे स्वेलिंग आती है, ना कि टेंडन पे स्वेलिंग आती है। तो जब आप अग्निकर्म करते हो, तो वो आप वो टेंडन पे करते हो, ना कि, सॉरी, उस एपिकोंडाइल पे करते हो, ना कि टेंडन पे करते हो। समझे? तो आप जी सर। में भी जो अग्निकर्म कर रहे हो, वो टेंडन पे नहीं कर रहे हो, वो इपिकोंडलाइटिस पे कर रहे हो। तो अभी इपिकोंडलाइटिस का मतलब क्या है? इपिकोंडाइल तो बोनी पार्ट है,
उस पे कैसे क्या स्वेलिंग आ गई? तो उसको कहते हैं जो ये होता है, हमारी जो बोन होती है, आई एम नॉट गेटिंग द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्ट। ह्यूमरस, नहीं नहीं नहीं, बोन की बात नहीं कर रहा हूं मैं। उस पे एक एल्बो। लेयर होता है, बोन पे एक लेयर होता है, उस लेयर पे वो स्वेलिंग होती है, ऑस्टियम, समझे ना? उस एक स्पेसिफिक लेयर होता है, उसका नेम ऑस्टियम की ऑस्टियोसिस ऐसा उसे कुछ बोलते हैं, उस पे स्वेलिंग आती है, ना कि उस टेंडॉन पे स्वेलिंग आती है। तो आप वहां पे भी टेंडॉन पे अग्निकर्म नहीं कर रहे हैं। गॉट इट? जी सर। सर मतलब अपने सर वो ये कैसे सर इवॉल्व किया करें, क्योंकि सर मैं अभी जनरल एलोपैथी करता हूँ सर, और मैं धीरे धीरे मतलब सीखने का प्रयास कर रहा हूँ सर ये बस आयुर्वेद में। सीखते रहिए, कारवा बनते जाएगा। मैंने भी एलोपैथी से शुरुआत की थी, 8 साल 10 साल मैंने सर मैंने। आपको इंस्टा पे मैसेज भी किया था सर, हाँ हाँ। मास्टर क्लास इन आयुर्वेदिक ऑर्थोपेडिक्स के लिए, और सर मैंने एक पहले भी पेशेंट के लिए सर पूछा था जिसको सर राइटर्स क्रैम्प था, उसके लिए भी सर मैंने आपसे पूछा था इंस्टा पे। एक्चुअली राइटर्स क्रैम्प जो है वो जो है वो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। जी सर। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो उसमें हम कभी और बात करेंगे डिटेल में, क्योंकि आज जी सर। काफी सारे। हाँ, यस, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर प्रतिभा मैडम। इट इज द पेरियोस्टियम जो मैं बोल रहा था, दैट इज द स्वेलिंग इज ऑन द पेरियोस्टियम। डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच प्रतिभा मैडम फॉर रिमाइंडिंग मी। तो सर वो क्लास के लिए भी सर जानना था सर। आप ललित सर को मैसेज कीजिए, मास्टर प्लीज म्यूट योर सेल्फ इफ यू आर नॉट स्पीकिंग। रुद्रानी सावदेकर मैडम। ओके, तो मास्टर क्लास इन आयुर्वेदिक ऑर्थोपेडिक अगले महीने से मोस्ट प्रोबेबली 10 सितंबर से शुरू होगा। तो यू बी कनेक्टेड विद डॉक्टर ललित हेड़ा सर और मंजूषा चित्ते मैम, वो आपको डिटेल्स भेजेंगे। सॉरी मैडम, जी मैं सर। नाड़ी परीक्षा नहीं सिखाता हूँ, डॉक्टर रिंकू शर्मा मैम। मैं नाड़ी, ये 10वीं परीक्षा में जितनी नाड़ी है, वात पित्त कफस नाड़ी, उतनी ही देखता हूँ। आई एम नॉट द एक्सपर्ट ऑफ नाड़ी। Sir, please explain any pain through the स्त्रोतस, how to diagnose। मैंने अभी तो बताया ना आपको, स्त्रोतस का जो एग्जांपल, 2 एग्जांपल दिए थे कि पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल आर्थ्रालजिया जो होता है, वो जो आपका रसवह स्त्रोतस होता है, वहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है। अच्छा चलिए ठीक है, एक बहुत अच्छी एग्जांपल मुझे याद आया रसवह स्त्रोतस का। ये मेरे पास एक पेशेंट आई, मेरी ओल्ड पेशेंट थी, एंड शी वाज टेलिंग कि मुझे मम्स जैसा हो गया है, और दोनों भी गाल मेरे बहुत दर्द हो रहे हैं, मेरे दोनों भी जो टीएमजे जॉइंट है वो बहुत दर्द हो रहा है। तो मैंने डेंटिस्ट को दिखाया, मैंने ईएनटी सर्जन को दिखाया। तो उन्होंने कहा कि भाई, डेंटिस्ट ने कहा कि हमारा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और फिर जब हम ईएनटी के पास गए तो ईएनटी ने बताया कि आपका जो सलाइवरी ग्लैंड्स है वो ब्लॉक हो गई है, और आपको जो सलाइवा कम आ रहा है उसकी वजह से वो सलाइवेशन जो है, वो सलाइवरी ग्लैंड सीक्रेट नहीं कर पा रही है, और वो सलाइवा जमा हो रहा है, और इसकी वजह से आपको पेन हो रहा है। तो आई हैव गिवन द सिंपल रसपाचक औषधि, रसपाचक चूर्ण उनको दिया, और कवल गंडूश करने के लिए बताया इरिमिरादी तेल के साथ। एंड द अमेजिंग थिंग कि 8 दिनों में उनको सलाइवा बनना चालू हो गया, सलाइवरी ये चालू हो गया। सूक्ष्म वरा एक टैबलेट या सूक्ष्म त्रिफला भी जिसे कहा जाता है, वो उसमें मैंने ऐड किया था। एंड द लॉन्ग स्टैंडिंग 3 से 4 महीने से वो परेशान थी, उनको कहा गया था कि उन सलाइवरी ग्लैंड के जो ट्यूबिल्स है वो ब्लॉक हो चुकी है, वो ट्यूब्स ब्लॉक हो चुकी है, और उसे ओपन करना पड़ेगा। तो उनको ओपन करने के लिए उन्होंने ऑपरेट सजेस्ट किया था, जबकि हमारी मेडिसिन से वो विद इन 15 डेज, सिंपल 3 मेडिसिन, कोई इसमें हिडन फॉर्मूला नहीं है कि रसपाचक रसपाचक का चूर्ण दिया था मैंने, आप रसपाचक वटी भी यूज कर सकते हैं। कवल करने के लिए बताया था, और एक और सूक्ष्म त्रिफला, और एक चीज बताई थी उनको कि सुबह शाम थोड़ा सा इमली चबाइए या इमली को चूसिए, जिससे कि सलाइवरी ग्लैंड में सलाइवेशन शुरू हो।
how to differentiate plantar fasciitis and sorry. Yes, that is what Rajan Patel sir कि स्मोकिंग के साथ पेन आया और स्मोकिंग छोड़ दी तो पेन चला गया. Sir, please explain any patient. You got your answer, Sudha Valla madam? How to join morning Ayurveda? ये तो आपको बोल देंगे. Morning with Ayurveda is available on YouTube. Though you have to ask it to Lalit sir. Very informative, systematic, and organized presentation. Very clear and deep. Thank you so very much, ma'am, for your kind words. Sir, any lecture series on Rog Nidan? I only take lectures सर on pain management. निदान के बारे में बोलता हूँ. इस सीरीज की जो थीम जिनके दिमाग से आई थी, वैद्य शिल्पा एरमे मैडम, वो निदान में काफी अच्छा उनका काम है. और उनके साथ आईआईएस के हमेशा लेक्चर्स होते हैं. खास करके मैडम का नाड़ी परीक्षा, उसके साथ में आहार, उसके साथ में प्रकृति परीक्षण, जीवा परीक्षण, इन सब चीजों में ये होता है. यहाँ पर मैं मेरा नंबर डाल देता हूँ. अगर उसके बारे में आपका कुछ भी इंक्वायरी है तो आप मुझसे बात कर सकते हो. सेकंड चीज, मॉर्निंग विथ आयुर्वेदा के लिए भी आप मुझे मैसेज कीजिए. मैं मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक देता हूँ. वहां पर आपको मॉर्निंग विथ आयुर्वेदा के लिंक भी आएंगे. सेकंड थिंग, जो पुराने लेक्चर हुए हैं उसके रिकॉर्डिंग भी वहां पर रहने वाले हैं. Okay, any other questions? You can ask क्योंकि बहुत सारे मैसेज है तो you can ask by unmuting yourself. नमस्ते सर. हम subside permanently by treatment. Yes, Hello, you sir. can, madam, but the patient have to lose the weight. हाँ, yes. सर, जो आयुर्वेद में डिफाइन की गई है पेन्स डिफरेंट तरह की, जैसे तोद, भेद, रुजा, ऐसे 7 तरह की डिफाइन की है. सभी मुझे याद नहीं है इस टाइम. It's okay. तो उनमें कैसे डिफरेंस करना, वो मुझे डिफरेंस नहीं आता. इसीलिए तो मैडम हमने आज शायद जो मैंने आपको बोला कि धातु विचार और दोष विचार उसमें कीजिए. आप धातुगत रुजा के लक्षण या धातुगत वेदना के लक्षण अगर आप पढ़ोगे तो आपको उसमें सारे आंसर्स मिल जाएंगे. जैसे तोद है तो वो रस धातु का वैषम्य है. अगर थ्रॉबिंग पेन है, बर्निंग पेन है तो वो रक्तगत धातु का लक्षण है. अगर डल पेन है तो वो मेदगत धातु का लक्षण, मेद धातुगत रुजा का लक्षण है. सर, तोदवत पेन कैसे बताइए आपने? तोद का मतलब क्या है? स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन, जहाँ पे रस धातु का वैषम्य है. हाँ. वहां पे तोद है. थैंक यू वेरी मच. Yes. Sir, can there be a chance of Samalakshana in Koshta and Niramalakshana? I mean, pain in the dhatu level, like for example, painful, very painful in the particular region, but Koshta में Samalakshana है, तो वहाँ कैसा संप्राप्ति को, like how to break the? Might be that pain because it is a dhatukshayanya. Samvat is samta is also is of two types. Samta is also of two types. It may be a dhatukshayanya samta. So where you have to first of all, if there is a samta in costa, you have to treat it, because unless and otherwise you will treat the samta in the costa, the basic digestion or the basic nutrient absorption in the body will not be correct. So although you will get the medicine, the best medicine, although you will give the best medicine by oral to the patient, and if there is a samta in the grahani, then it will not be absorbed properly, first of all. Got it? So you have to clear it.
then that's why there is a concept of Panchakarma to bring the doshas from Shakha to Koshta. Okay. Okay. And then there are something just like I have told you in the modern day, if you can specify that where in which part of the pain, then I can tell it more better. Sir, actually, it's a diabetic patient from a very Okay. long history, and initially obese diabetic patient now become lean, but along with that, severe tenderness and pain in the knee joint in the left, only in the left knee joint, with little bit inflammation also. So that became very difficult to understand the case itself, like how to approach. No. This is the first of all. This is the holiest. You have to take the bird's view eye. Okay. So in this type of case, you have to take the bird's view eye. आपको bird view eye लेना पड़ेगा. Bird view eye का मतलब क्या है? You don't have to look the patient like the patient pain of the left knee only. As you have told the history, the patient was obese and then become the lean. So it means that there is a problem in his metabolism. He has lost the protein. He is now having the weak muscles overall. There is a muscle wasting because he has not lost only muscles and all that things, he has also lost the mitochondria. So, mitochondria. Then, because of the long-standing diabetes, he may have developed the myopathy. That is because what is the basic treatment of what is the first line of treatment or the best treatment Panchakarma for the Madhumeha patient? Can anybody tell? Which Panchakarma? Sorry? Which Panchakarma or which Purva Karma is advised? No. First of all, understand Madhumeha is a Kshayjanya Vyadhi. So Dhatu Kshay. Here, Dr. Prithvi is telling that there is a Dhatu Kshay, there is a Mansa Kshay. The patient has lose the weight. There is a Medo Kshay. So if there is a Kshay, woman or the Basti will create the Dhatu Prakop. Will create the Vata Prakop, and that Vata Prakop will aggravate the pain. Here, the best thing which you can do is the Snehana, the basic Snehana. Sarvanga Snehan is the best treatment for this patient, Dr. Prithvi ma'am. Not only up to the knee. Now coming to the knee, you have to assess. Always remember one thing: when there is a pain in a particular one joint, like in the elbow or on the knee or in the hip, you have to check for the two more joints, one above it and one below it. Got it? So if there is a problem in a knee joint, there may be a problem in a hip joint. There may be a malalignment of sacroiliac joint, or there may be the patient may have the spinal anomaly, and that's why there is an imbalance in his both legs, and might be the history of trauma may be there. Then when you are speaking that the patient is having the knee pain, so what is meant by having the knee pain? Is there a problem in problem in meniscus? Is there a problem in ligaments? Is there a problem in nerve supply or neurotic pain? So you have to differentiate. You have to think all about this. And when you come to a conclusion, you will find one by one things. The patient is diabetic, check the sugar. If the sugar level is high, the patient may having the neuropathy or the myopathy, you have to control the sugar. Then, as I have thought, the patient has already lost the weight, patient has already lost the meda, so you have to do the Snehana of the patient. Only Snehan of the patient regularly. Then you have to check for the hip joint, lumbar alignment, and the ankle joint along with the knee joint.
and then lastly come to the knee joint, and then you will definitely get the results. If the patient is having the meniscus tear or the meniscus rupture, or if he having the ligament tear or ligament sprain or something like that, then we have to treat according to the dhatu vichar also. Do you got Yes, Prithvi ma'am? sir. Yes, sir. Very clear. Got a good idea about this. I had never thought about this line. Thank you, sir. Yes. Thank you very much. My clinic is in Akola. Dr. Akshay sir, if you want to switch the practice from general allopathy to Ayurveda, my journey was very abrupt because I have got some medical condition in 2016, and then I have thought ki I have to start the Ayurvedic practice. Then I go to different places, I go to different Vaidyas, I stay there, I learn from their concept. Then I integrated it when I started my practice in early days. जब मैंने मेरी प्रैक्टिस चालू की तो मैं भी वही जानू बस्ती कटी बस्ती ये सब कर रहा था, थोड़े बहुत पैमाने पे अग्नि कर्म वेदन कर्म कर लेता था। लेकिन जब मुझे ध्यान में आया कि यार मैं पेशेंट का डिसीज ही नहीं समझ पा रहा हूँ तो कैसा एक्सपर्ट हूँ, तब मुझे पहला ये बात समझ में आई कि पहली ये चीज ध्यान में आई कि यार हमें जिस सब्जेक्ट में अगर हमें कुछ एक्सपर्ट खुद को कहना है, somebody is asking about my address, I will put my personal number, please message me ma'am, I will send the location. Okay, so coming back to the Dr. Pandey sir's answer, so then I start reading about the books, I start reading about the assessment skills, I started discussing about my orthopedic patients, orthopedic friends, that how you think about it. Then I have done lots of courses. I have gone for some small courses like 2-3 days workshops of the pain management. Then I have decided that this is not sufficient. Then I have done the master diploma in osteopathy. So the osteopathy gives me the more clear idea, and it gives me the more clear idea of how Ayurveda is working. Because क्या होता है ना, जब कोई बाहर वाला आपको आपके लिए बोलता है तो हमें ज्यादा अच्छा लगता है, जब हमारा कोई बंदा बोलता है तो हमें उसका उतना इंपॉर्टेंस नहीं रहता है। लेकिन जब मैंने ऑस्टियोपैथी, कायरोप्रैक्टर, इन सारी चीजों को जब पढ़ना शुरू किया तो मुझे समझ में आने लगा कि यार ये सारी चीजें तो आयुर्वेद में बताई गई है, सिर्फ हमने फॉलो नहीं की। देन पेशेंट से सीखता गया, असेसमेंट करता गया, जैसे जैसे पेशेंट ट्रीट करता गया, जैसे जैसे पेशेंट को समझता गया, दर्द समझता गया। इनिशियल स्टेजेस में बहुत बार फेल्यूर आए, बहुत बार पेशेंट ठीक नहीं होता था, लेके बैठता था, बहुत लोगों के साथ डिस्कस करता था, जितने भी मेरे आयुर्वेद प्रैक्टिस करने वाले फ्रेंड्स थे उनसे साथ बात करता था, जितने ऑर्थोपेडिक सर्जन थे एक ही केस पे ऑर्थोपेडिक सर्जन के साथ भी बात करता था, उसी समय आयुर्वेद फ्रेंड्स के साथ भी बात करता था, कुछ फिजियोथेरेपिस्ट से भी बात करता था कि उनका, फिर उन तीनों का अप्रोच लेके खुद का एक अप्रोच देखता था, जो चीजें वो बताते थे वो पेशेंट में ढूंढता था, एंड दैट्स ऑल वो बनते गया। आज यहाँ तक कैसे पहुंचा है वो बोलना भी बहुत डिफिकल्ट है। तो एक ही चीज बोलूंगा, आप जिस फील्ड में अगर पैशनेट है तो एक स्पेशलिटी चूज कीजिए और उसमें लगे रहिए बस। आज सबसे पहला जो मैंने शुरुआत के दिनों में जब मैं आयुर्वेद प्रैक्टिस की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा था तो मैं बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस में जाता था, कोई भी कॉन्फ्रेंस छोड़ता नहीं था, क्योंकि वहां पे बहुत सारे आयुर्वेद डॉक्टर्स मिलते थे, लेक्चर सुनने को मिलते थे, उनसे बहुत इंस्पायर होता था। तो वैसे ही एक लेक्चर थे डॉक्टर वैद्य तपन कुमार सर, जिनको आप कल सुनोगे। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि पिछले 9 सालों में मैं तपन कुमार सर के साथ एक प्लेटफॉर्म पे मेरे व्यूज शेयर कर पा रहा हूँ, तो वो बढ़ते रहेगा।
Yes, sir. Thank you so much for the wonderful session. Now, I would like to call, just a reminder for tomorrow's session by Vedit Tapan Kumar sir on topic Charak, Oh My Darling. Next, I would like to call Dr. Naya Shah for vote of thanks. Naya Shah, are you here? Yes, thank you so much, Shruti Goel. Good evening, respected dignitaries, esteemed speakers, teachers, organizers, and all the participants. It is my privilege to propose the vote of thanks in this auspicious meeting. First and foremost, I extend my heartfelt gratitude to our esteemed speaker, Vaidya Swapnil Gawande sir, the director of Arvachin Ayurved Gurukul, for his enlightening and insightful session on Ayurvedic Trividya Pariksha for effective pain management. Your valuable knowledge and practical insights have helped us understand the importance of Trividya Pariksha in clinical practice and effective pain management. Next, I would like to express my sincere gratitude to the Indianopedia Ayurved Scholarate and Ayurved Welfare Foundation for organizing this wonderful 4-day online lecture series and providing us with an opportunity to reconnect with the timeless wisdom of Acharya Charak. A special thanks to our respected organizing team, Dr. Manjusha Chitte sir, Dr. Lalit Heda sir, Dr. Shilpa Yerme ma'am, Ayurved Welfare Foundation for the dedicated efforts, coordination, and contribution in making this academic event possible. I also extend my sincere thanks to all the participants for their enthusiastic presence and active involvement. Your participation truly adds meaning to such academic initiatives. Thank you, everyone.